Allah, all okay? Yes, sir. Buddy? All perfectly fine, sir. This time, sir. I hope Chalo. this time everything is clear from my side, from everyone's side. Uh, sir, it's a small issue happening since morning only. That's the No, reason. no, 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 no. All right. Before wasting much of your time and everyone's time, so first of all, heartiest welcome, Lieutenant Purushark, Suyal, retired, on behalf of whole Cult SSB and team. We are very honored to have you on board as the guest officer talks of the day. It will be our 18th officer talk since the establishment of Cult SSB. Previously, we have hosted a lot of senior officers, starting from Lieutenant Commander Vijay Nair, Squadron Leader Jyoti Rani, Lieutenant Commander Payal Gupta, and many such senior officers. And apart from that, we have also hosted a lot of commissioned students who were there a part of Cult SSB. So it's an again honor to host a naval officer, a direct senior of me from academy days. I don't know when we have never met any time in the academy, but God's fortune and luck we have met here. And more importantly, when I interacted with sir, मुझे इतने सारी चीज़ें जानने को मिली जो शायद मैं सर्विस में रह के भी शायद नहीं सीख पाता, क्योंकि उन्होंने ऐसे साइड ऑफ सर्विस देखी है जो शायद ही किसी ने देखी है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ही हैज़ सीन areas of life which has never been touched by any officers whom I know personally, even the senior most officers whom I ever met, till vice admiral or rare. ठीक है. तो a little bit about Lieutenant Purushark, Suyal, retired. He got commissioned in 2012, and post that he has served for a good number of years, and thereafter he got recommended thrice, starting from NDA, then for TES, then for 10 plus 2 BTech Navy. So he has got a track record of 0 screen outs, 0 conference out, and 3 multiple recommendation, which is something which is very extraordinary. एंड मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर पाया, और सर ने अपने शुरुआत से ही सर ने वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट दिखाएं. तो ये एक तो सर की बहुत पहली अच्छी चीज़ मुझे लगा, लाइक पहली कि इससे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है. सेकेंडली, ही वॉज एन इंस्ट्रक्टर एट नेवल अकेडमी. एंड देखो, टू बिकम एन इंस्ट्रक्टर इट्स एन ह्यूमंगस जॉब, बिकॉज सबका ड्रीम होता है कि जहाँ से हम सीख के जाते हैं या सीखते हैं वहाँ पे जाके पढ़ाना और वहाँ पे जाके वापस उन्हीं को सिखाना. तो सर did it in his initial tenure of his service. Post that he was also an ATC officer at INS Rajali. For those who don't know, INS Rajali is aviation unit, है ना, where basically naval air squadrons are there, and he was an officer posted there, and he has seen a lot of challenges as an ATC officer there as well. He was also a staff officer at INS Vendurti, which is also a unit in Southern Naval Command. Post that he was also coordinated विद द प्रोजेक्ट NAISS, जिसके बारे में हम इस सेशन में भी समझेंगे. काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जो हम सर से सीखेंगे, समझेंगे. सर की एक नीश एरिया है रिगार्डिंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिप्लोमेसी, जो सर ने अपने पूरे इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू काफ़ी कैंडिडेट्स को ऑलरेडी मोटिवेट कर रखा है. बट स्टिल हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी जितने कैंडिडेट्स हैं दे गेट अ लाइव इंटरेक्शन एंड लाइव लर्निंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम यू. So heartiest welcome on behalf of whole Cult SSB and team, sir. Thank you, Allah. It's a pleasure to hear all those kind words from your side, and thanks for such a broad introduction about me. See, I was posted at INA as an instructor not only because I was very good, amazing, but it was because I had a very good PR. The commandant of the Naval Academy, the deputy commandant of Naval Academy, Rear Admiral MD Suresh, that time he was Deputy Commandant of INA, and Vice Admiral Bhokre. They used to like me a lot because I was a very good cadet in terms of debate and so many things. So what happened in service, I was injured while doing some operation, some exercise. I was injured. So they thought of utilizing my expertise at INA. I was posted as staff officer in Vendurthi. So they thought that they should, utilize my expertise at the Naval Academy itself. So they specially brought me on signal transfer. A signal was sent to headquarters, and I was within 2-3 days. I was brought from Vendurthi to INA. So it was not really because I was some very highly specialist officer, but it was because I had a very good relation. People had a very good image of mine, and they thought that I shall be, very beneficial for training cadets at a very initial stage. So that's why I was posted at INA. My real life began after I was posted at INA. I was chosen for this ATC course at Air Force Academy.
From Correct, there, sir. my journey took a flight, a new trajectory where I was posted as an ATC officer. I did training at Air Force Academy, and then I was posted back to the Navy. So that is how I took my professional flight. But my initial posting at INA was truly goodwill of my commandant, deputy commandant, and senior officers. So if you have good image with your seniors, if you are polite with your seniors, if you have good PR, trust me, guys, it will always help you. There is no point becoming boss with your senior and telling कि मैंने तो पलट के दे दिया सीनियर को, जवाब दे दिया मैंने, मैं तो बॉस हूँ. हीरो अपने जूनियर के सामने बनते हैं, सीनियर के सामने we have to be humble. Yes sir, what you are saying is correct, or put forward a point very humbly. Sir, how about it idea? How about, sir, this can also be one of the solution, in my humble opinion. If you put forward idea in a very humble way, seniors take it, and they always remember you as a very good junior. So that was my image. For that, I have got, many leeways in service because of my image. My image has always helped me. Pallav. करेक्ट सर. दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सर आई गेस ये काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग भी रहेगा थ्रू आउट द होल इंटरेक्शन विद यू एंड मी इन द अपकमिंग फ्यू मिनट्स. सो सर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच सर. वाई डिड यू ज्वाइन नेवी सर? है ना, आप तो सर पहाड़ी हो जनरली सर. जनरल क्वेश्चन. अच्छा, फॉर दोज हु डोंट नो, लेफ्टिनेंट पुरुषारक सुहेल रिटायर्ड इज़ फ्रॉम हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड. And so sir, generally people from Pahadi region joins army. So what drive you to Navy despite being thrice recommended for all the three services? Yes, I have been recommended for, thrice I have been recommended. But trust me, when I was very young, I was very fascinated by James Bond. And I knew that James Bond's full name was not James Bond. His name was Commander James Bond. So when I came to know in the Ian Fleming's novel that his name is Commander James Bond, and he works for military intelligence, so I was very fascinated. I thought, yeah, I will also become Commander Purushark Suyal and I will join the naval intelligence one day. That was my passion. So I was always fascinated by the way he used to wear dresses. Then when he used to fight, उसका सब कुछ खराब हो जाता था, but उसके कपड़े खराब नहीं होते थे. तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी. मैंने कहा यार, that's very nice thing. और आपके कपड़े कभी गंदे नहीं होते हैं. तो I had a very good image of how to keep yourself clean. Your spick and span should be very exemplary. Okay, whatever you do, you should wear good clothes, you should behave well. So I was fascinated by these things. So these things are very well taught in the Navy. They actually train you to be a gentleman. Navy काफी पैसा खर्च करती है आपको एक well groomed gentleman बनाने में. वैसे तो सभी सर्विसेज खर्च करती हैं, but Navy का थोड़ा ज्यादा ही लगाव रहता है इन सब के पीछे. So that is why I was fascinated by Indian Navy, and that is why in my NDA form मैंने Navy को अपनी पहली प्रेफरेंस दी. करेक्ट सर, करेक्ट. दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो सर. जेम्स बॉन्ड से आपकी कहानी शुरू हो रही है. तो सर नाउ लेट अस अबाउट हाउ एग्जैक्टली सर आप उस बोर्ड से रिकमेंड हुए जो अभी सर आई होप सर यू नो दैट NSB कोयम्बटूर इज नाउ नो मोर देयर, लाइक द बोर्ड हैज़ गॉट स्टॉप्ड. सो सर हैज़ गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 3 डिफरेंट बोर्ड्स and I was fortunate enough to visit NSB कोयम्बटूर. उसके कुछ महीनों के that board got stopped. It's just like समय रैना का शो. तो what happened was, so sir, you got recommended for the very first time from that board. So how was your journey being a fresher getting recommended? Guys, trust me, my behavior has always been very formal. I have been a very formal man. You will see me in my Instagram videos also, I talk very formally. In my personal life also, I thank my mother. Even when she cooks food every day afternoon, my lunch, I thank her. So formality is my conduct. What happened, because of this formality in my SSB, people used to think कि I am faking it. I am faking it for the sake of SSB. मैं अच्छा बनने की acting कर रहा हूँ. So in my first SSB, my experience was not good because जो आपकी command task होती है उसमें, और मुझे group से कभी support नहीं मिला. People always used to outcast me मेरे group में. तो आपको शायद याद होगा, जब भी आपकी कमांड टास्क होती है ना, आपको एक बंदे को बुलाना पड़ता है शायद. मतलब इट इज कमांड टास्क और इट इज सम अदर टास्क. सर कमांड टास्क, करेक्ट सर. है ना, बहुत पहले मैंने दिया, 2011 में दी थी. yes, sir, तो कमांड टास्क में आपको यू हैव टू कॉल अ गाय. अपने 10 के ग्रुप से यू हैव टू कॉल अ गाय. तो जिस बंदे को जितने ज्यादा बार बंदे बुलाते हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ लीडर. उसको लगता है कि ही इज वेरी एक्सेप्टेबल इन द ग्रुप. तो मुझे जो है किसी बंदे ने भी नहीं बुलाया था. आउट ऑफ 10 आई हैड 0 कॉल्स. Nobody called me and I was so dejected. I thought कि fucking I'm gonna get, मैं तो गया, मैं तो यार acceptable हुई नहीं, मैं तो recommend हो ही नहीं सकता. And fortunately among that 10 guy, only I was the one who got recommended.
एंड रेस्ट अदर 9 जो थे मेरे साथ वो रिकमेंड नहीं हो पाए. उन रिकमेंडेशंस में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, सैनिक स्कूल के भी थे, कुछ ऑफिसर्स के बच्चे भी थे. सो द लेसन ओवर हियर इज कि जितना आपको लोग सिखाते हैं कि ट्राई टू बी ग्रुप के साथ चलो, है ना, यू शुड बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप, ये सब अच्छी बात है. बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो हो, अगर आप वैसे नहीं हो तो बनने की एक्टिंग मत करो. आप जैसे हो, इफ यू बिलीव यू आर वन मैन आर्मी, सो डोंट ट्राई टू बी समथिंग एल्स. यू से सर दिस इज माय डीमेरिट, ये मेरी पर्सनालिटी का एक शॉर्टकमिंग है. आई बिलीव मैं अकेले करता हूं, बट यस मैं इंप्रूव करूंगा अपने आप पे इफ इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस. तो माय फर्स्ट एसएसबी वाज लाइक दैट. मैं रिकमेंड तो हो गया था, बट इट वाज वेरी पेनफुल. मुझे अपने ग्रुप के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाने में बहुत मुश्किल हुई थी बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर. बिकॉज आप सब जानते होंगे, जब आप स्कूल में रहते होंगे, if you try to be a good boy, if you try to speak in English, if you try to do something good, thousands of people are there to pull you down. Everybody will try to pull you down. Correct. So it was in my group also in my first SSB. It was not a good experience. But yes, God was with me. My mother's blessing was with me. So luckily I cleared it. तो पहला एक्सपीरियंस तो यार पल्लव यही था मेरा. अच्छा नहीं था, but thankfully I cleared it. Sir, so generally people face very difficult getting multiple recommendation, and more importantly multiple recommendations is ज़्यादा important है सर. आप fresher में screen in हुए, and we will be taking the very basic question. Sir, what made you to get screened in back to back 3 times, sir? See, yes, पता नहीं I should tell or not. See, these are very general things which everybody will tell you, that you should have good communication skill. ठीक है, यू शुड फाइंड अ टाइम. पहले सब मछली मार्केट बनाएंगे और जैसे कि आपको हल्का टाइम मिलेगा उस टाइम में आपको बोलना है. आप दुनिया की किसी एसएसबी कोचिंग में चले जाओ, एवरीबडी विल टेल यू द सेम थिंग. बट मेरे कुछ हैक्स थे, मेरे 3-4 हैक्स थे कुछ विच आई हैड डिवाइस्ड माई सेल्फ. वो मैंने पहले एसएसबी में लगाया स्क्रीनिंग में, तो इट वर्कड. फिर आई अप्लाइड द सेम हैक इन माई सेकेंड एसएसबी, इट वर्कड. देन इन थर्ड एसएसबी इट वर्कड. तो क्या है कि इट इज अ वेरी हैक यार. फर्स्ट डे इज नॉट अबाउट योर लीडरशिप और एनीथिंग. फर्स्ट डे इज ओनली अबाउट क्रिएटिंग एन इल्यूजन. क्योंकि फर्स्ट डे आपको ना साइकोलॉजिस्ट देखता है, ना आपको जीटीओ देखता है, ना आपको इंटरव्यूअर देखता है. आपका बस एक पीपीटीटी जाता है, आपकी फोटो जाती है, साइकोलॉजिस्ट आपको देखता है, और वहां पे 2 ऑफिसर बैठे रहते हैं बहुत यंग रैंक के, कैप्टन रैंक के रहते हैं. मैं तो नेवी का लेफ्टिनेंट हूं, आर्मी के कैप्टन या एक कोई मेजर रैंक ऑफिसर रहेगा. दे विल जस्ट ऑब्जर्व यू एंड दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द स्पार्क. तो अगर आपने एक स्पार्क का इल्यूजन क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि पहले दिन स्क्रीनिंग में बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं वो भी बाहर हो जाते हैं, बट जो बहुत गलत बच्चे होते हैं ना, जिनको मतलब एसएसबी में रिकमेंड होना ही नहीं चाहिए था, वो भी पहले दिन जरूर हो जाते हैं रिकमेंड. बिकॉज फर्स्ट डे इज नॉट अबाउट लीडरशिप, फर्स्ट डे इज अबाउट इल्यूजन. अगर आपने इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि आपने कुछ बहुत बड़ी बात है, तो आपको ले लेंगे. भले आप अगले 5वें दिन आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओ, बट पहले दिन आपको धक्का लग जाएगा. तो आई हैड सच हैक्स व्हिच आई यूज्ड इट एंड आई क्लियर्ड इट एवरी टाइम. Sir, very rightly said, sir. 1000% agree. Illusion, because that illusion was not created by me consecutively 5 times, and sir ने वो चीज़ जो बताई है हैक, एंड ये हैक को थोड़ा सीक्रेट रखेंगे सो दैट एंड में हम रिवेल कर पाए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आगे बहुत सारी चीज़ें जो हम कवर करेंगे. सो सर वी विल मूव फॉरवर्ड. सो सर हाउ वॉज दिस कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू गेट बैक टू बैक रिकमेंडेशंस, लाइक क्योंकि एक बार होना माइट बी अ लक और एनीथिंग, पीपल से दैट. सर सेकेंड टाइम बीइंग अ रिपीटर रिकमेंडेड, देन थर्ड. अच्छा गाइस आई एम सो सॉरी पल्लव यार फॉर डिस्टर्बिंग यू. मुझे शायद आप लोग ज्यादा क्रेडिट मत देना, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ. मैं जब तीनों रिकमेंड हो गया था तो मैं एक चौथी एसएसबी देने भी गया था. चौथी एसएसबी में फिर से स्क्रीन हुआ था, तो ये शायद मैं बताना भूल गया आपको. यस सर. बट चौथे दिन 4th डे आई लेफ्ट माई एसएसबी बिकॉज मेरी 3rd एसएसबी की मेडिकल का कॉल आ गया था मेरे पास. तो आई लेफ्ट एसएसबी, 4th एसएसबी इन बिटवीन. स्क्रीन होने के बाद 4th डे में वापस आ गया था एसएसबी से, बिकॉज मेरी एनडीए एसएसबी का कॉल लेटर आ गया था कि मुझे मेडिकल के लिए जाना है, रिव्यू मेडिकल के लिए. करेक्ट सर. तो मैं दैट इज व्हाई आई टेल ओनली 3 एसएसबी. मैं चौथी एसएसबी का नाम नहीं लेता हूं बिकॉज आई कुड नॉट कंप्लीट इट. करेक्ट सर. सो मतलब 4th recommendation was also awaited sir. That by God please that couldn't happen, but ठीक है, let's see. I cannot say anything यार उसके बारे में. True sir.
सर सो बैक टू द क्वेश्चन सर, सो व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस कंसिस्टेंट एफर्ट्स, क्योंकि काफ़ी लोग अपने 2 स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट्स के बाद दे गेट इन दैट डाइल्यूजन कि अब तो स्क्रीन इन होना ही मुश्किल हो गया. सो आपके लिए वो व्हाट वाज दैट बेसिक थिंग लाइक विच सेल्ड यू थ्रू आउट योर होल फेज 1 फेज 2 प्रिपरेशन? क्योंकि सर आपके टाइम में ऑल दिस चैट जीपीटी, फोन, यूट्यूब, इवन लेट मी टेल यू ऑल द ऑडियंस, व्हेन आई वाज आस्किंग फोटोज फ्रॉम सर ने बोला रिकमेंडेशन के फोटो के टाइम में फ़ोन ढंग के हुआ नहीं करते थे. तो सर उस ज़माने के थे और आज के टाइम है जब फ़ोन ऐसे एक्सेस है कि आप लोग इस मीटिंग को सुन रहे हो एंड वी आर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग वेरी वेल. तो सर हाउ वाज दोज डेज प्रिपरेशन एज कम्पेयर टू दीज डेज, क्योंकि आप भी मिल सकते हो, घुल मिल सकते हो सर, यू कैन जस्ट शेयर दैट एक्सपीरियंस. सो गाइस, मैं 2 मूवीज से बहुत इंस्पायर्ड था, तो बता चुका हूँ, जेम्स बॉन्ड. एक दूसरी मूवी आप लोग जरूर देखना, मैन ऑफ ऑनर. मैन ऑफ ऑनर इज अ लाइफ अबाउट अ चीफ पेटी ऑफिसर ऑफ यूएस नेवी. तो वो बड़ा जोशीला बंदा था यार, ही वाज वेरी जोशीला बंदा, एंड आई हैड लॉट ऑफ जोश. मेरे ब्लड में जोश तो बहुत था. मैं छोटी छोटी बातों पे मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे. देश, तिरंगा, अब तो खैर ऐसे नहीं आते हैं, बट बचपन में आ जाते थे एनडीए के टाइम में. तो आई थिंक दैट जोश रियली हेल्प मी बिकॉज दैट वाज माय ट्रू नेचर. और ट्रस्ट मी, एनडीए की जो एसएसबी होती है ना, या बच्चे होते हैं यार, हम 12th क्लास के बच्चे, है ना, तो आप जितना ट्रू रहोगे, देखो सीडीएस के टाइम पे ना दे एक्सपेक्ट यू टू बी स्मार्ट बिकॉज उनको पता है कि आप एक्ट कर रहे हो. सीडीएस का बंदा कभी भी इनोसेंट नहीं हो सकता. वो कॉलेज देख चुका है, 4-5 बंदियां पटा चुका है, धोखा दे चुका होता है, डबल डेट कर चुका होता है, बहुत बुद्धि आ चुकी होती है. बट स्कूल से आके ना सीधा 12th के बाद आप बहुत बच्चे हो यार, यू जस्ट कम आउट ऑफ स्कूल, तो वो आप रियल रह सकते हो, यू कैन बी रियल. ठीक है, तो मैं सच में ऐसा ही था. तो आई थिंक दैट वाज माय एक्स फैक्टर, यूएसपी, which I could sell in all the SSBs. But I was very true, very real. In fact, आज जब मैं SSB के ट्रिक वीडियोस देखता हूँ, जब लोग गाइड करते हैं, तो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता क्योंकि मैंने ये सब कभी नहीं किया. Like when I see on various shorts YouTube के कि आपको स्टोरी में ऐसे लिखनी है जिसमें एक हीरो है, मैं समझ नहीं पाता. मेरा एक फिक्स प्रोफार्मा था. मेरी प्रोफार्मा में बहुत एक स्ट्रगल होता था बिकॉज दैट इज हाउ माई लाइफ हैज बीन. आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. मेरी साइकी ही ऐसी थी कि स्ट्रगल था उसमें. मुझे स्ट्रगल ही मेरे आता था, मेरे हाथों से स्ट्रगल निकल के आता था. सो आई थिंक इट वर्कड इन माय फेवर. इट माइट नॉट वर्क विद समवन एल्स. देखिए, जो मेजर जनरल का बेटा है वो अगर मेरी जैसी कहानी लिखेगा तो फेक हो जाएगा, है ना. और तो आई थिंक आप सबके अपने अपने कुछ शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड स्ट्रगल्स होते हैं, वो रियलिटी आपकी स्टोरी में बाहर आनी चाहिए. ठीक है, ट्रू सर. तो आई थिंक मतलब दिस वाज माय एक्स फैक्टर यार. करेक्ट सर. सर वेरी राइटली सेड सर. इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट कि उनका रियलिटी क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज़ बीन शोकेस्ड विद द माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स. सो सर वी विल मूव फॉरवर्ड. You got recommended for Indian Naval Academy, right sir? So sir, you were in one of the prestigious Naval Academy during those time when Naval Academy was just inaugurated. हमने इससे पहले वाले एक टॉक शो में वी कॉल्ड लेफ्टिनेंट कमांडर नीलभ राय. He was one of the officers who were one of the first few batches officer who got commissioned from that academy. So sir, how was your academy tenure? Starting from 4 years from your day 1 and till the last day, क्योंकि जनरली यहाँ पे काफ़ी सारे नेवल एकेडमी जाने के भी एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी नेवी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सीडीएस आए हैं, एनसीसी नेवी एंड एनडीए नेवल एकेडमी 10+2 बीटेक. सो सर लेट अस नो अबाउट योर आईएन एक्सपीरियंस. See guys, I'll tell you, training is of 2 types. एक 4 साल की होती है, एक 6 महीने या 1 साल की होती है. अगर आप 4 साल की ट्रेनिंग के लिए अगर आप एनडीए जा रहे हो या ओटीए गया जा रहे हो या इंडियन नेवल एकेडमी आ रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर 4 years ऑफ ट्रेनिंग, इट इज गोइंग टू बी हेल. इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी हेल. इफ यू डोंट हैव ग्रेट डिटर्मिनेशन, प्लीज डोंट डू. बट यस, अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हो, यू आर गोइंग टू सीडीए, ओटीए गया, सॉरी ओटीए चेन्नई, या आप इंडियन नेवल एकेडमी आ रहे हो एज एनओसी, या आप कहीं भी जा रहे हो, आईएमए जा रहे हो, इट इज अ वेरी गुड थिंग. यू नो, आई शुड यूज द वर्ड दीस डेज दे आर जेल हो जाती गाली वाली देने पे, बट मैं कैसे बोलूं. सी फौज में भी ऑफन यूज यार, मतलब व्हाट टू यूज यार, फक को क्या बोला जाए सर? वही ट्रेनिंग को मैं क्या बोलूं, शुद्ध वर्ड्स में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब वही बोलते हैं यार, फौजी वर्ड में ट्रेनिंग इज कॉल्ड फक. ठीक है, सो इफ you can take fuck for 1 year, please do join these academies. And if you think the similar thing you can repeat for 4 years, 4 साल तक आप ले सकते हो, तभी आप एनडीए एंट्री से कोई एंट्री चुनो, बिकॉज इट इज अ वेरी टफ थिंग. 4 साल तक ये सब खेलना बहुत मुश्किल होता है.
आई हैव क्राइड माई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म मैंने रोया है, मैं बस रो चुका हूँ। मतलब ट्रस्ट मी, व्हेन यू गेट ट्रेन्ड, मुझे ऐसा लगता था कि कोई ट्रक आए और मुझे कुचल के चला जाए, एंड आई एम नॉट लाइंग। मुझे लगता था मैं कुचल देगा ना तो शायद कुछ दिन मैं बच जाऊंगा, मुझे इस ट्रेनिंग से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। Yes. एंड सो Okay. it was very tough buddy for me, yaar, but my course mates were very good. Yes, sir. I would like to thank my course mates, yaar. They always saved me. Because of them I could pass out. My credit goes to my seniors, course mates. It was good journey. जिसने भी यहाँ 4 साल की ट्रेनिंग की होगी वो रिलेट कर पाएगा उससे। एंड लेफ्टिनेंट नीलम राय तो मेरे बहुत अच्छे सीनियर है यार। आई हैव मेट हिम इन सदर्न नेवल कमांड। Correct, sir. वेरी हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर, वेरी गुड ऑफिसर। Yes, sir. Yes, sir. Rightly covered, sir. Sir, we would love to know about your most toughest part of their academy days. क्योंकि सर काफ़ी लोग जितने भी ऑफिसर्स आए हैं उनके काफ़ी अलग अलग मोमेंट्स रहे। सो व्हाट वाज योर एरिया और व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट यू फेस्ड? किसी किसी के लिए एकेडमिक्स होता है सर। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए इट वाज सम सर्विस रिलेटेड थिंग्स। सो सर व्हाट वाज योर थिंग सर? एंड मोर इम्पोर्टेंटली 4 साल इज़ अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम। उसके हिसाब से सर I'll tell you यार, मेरे लिए टफेस्ट थिंग वाज अकेड्स। बिकॉज मैं पढ़ने में तो अच्छा हूँ, बट मैं अकेडमी जाके ना मैं गर्लफ्रेंड बनाने में रह गया था। तो मैं ऑनलाइन ना, हमारे यहाँ फेसबुक चलता था प्रॉक्सी से, 12345 proxy.com, क्योंकि फेसबुक बैन था। लाइन तो हम लोग क्या करते थे, प्रॉक्सी यूज करते थे और प्रॉक्सी चला के फेसबुक चलाते थे, और वहां से मैं अपनी दोस्तों से बात किया करता था, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं था। तो आई वॉज वेरी पुअर इन अकेडमिक्स, बट आई वॉज गुड एट पीटी यार। फिजिकल ट्रेनिंग में आई वॉज वेरी गुड। मतलब आई वुड लाइक टू टेक दिस कि जब मैं पीटी रोप चढ़ता था, ये बात आप किसी भी शॉर्ट काट के कहीं भी किसी को भेज दो, मेरे कोर्समेट्स इस बात से एग्री करेंगे कि व्हेन आई यूज्ड टू क्लाइंब रोप, जब मैं रोप चढ़ता था तो 4 बंदे एक साथ चढ़ते हैं, ऐसे 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 एक साथ चढ़ते हैं 4 बंदे। तो जब मैं चढ़ता था ना तो 3 बंदे मेरे साथ चढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये साला इतने अच्छे से चढ़ेगा कि इसका स्टैंडर्ड देख के ना हम तीनों फेल हो जाएंगे। तो ऐसा होता था, पीपल यूज्ड टू फाइट कि पुरुषार्थ को मेरी रो में मत रख, तू अपनी रो में ले ले, तू तो वैसे ही फेल होने वाला है। सो दिस आई कुड हियर, मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुन के यार कि मैं इतना अच्छा करता हूँ। बट एज फार एज पुअर थिंग्स आर कंसर्न, माई कैट्स वाज वेरी बैड। मैं हमेशा 3 चरण में पास होता था। पहले चरण में पढ़ाई, जो कि मैं करता नहीं था। सेकंड स्टेज में एग्जाम लिखना, जो कि ऑनेस्टली मैं एग्जाम देता था, कोई चीटिंग नहीं होती वहां पे, देयर इज नो चीटिंग इन एकेडमी। अ थर्ड फेज, भीख मांगना। आई यूज्ड टू गो एंड बेग टू माय टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, देन दे यूज्ड टू ट्रेन अस, दे यूज्ड टू फोकस अच्छे से। उस ट्रेनिंग के बाद, रोल वोल कराने के बाद, हेलीकॉप्टर कराने के बाद, उल्टी कराने के बाद, 4-5 नंबर का ग्रेस देके दे यूज्ड टू पास अस। सो दैट इज हाउ आई हैव पास्ड, एंड दैट इज हाउ यू शुड बी यार, ऑल ऑफ यू। कहीं भी जाओ, अपनी जितनी भी आपकी कमियां है ना, उसको प्राउडली बताओ, कमियों को छिपाना नहीं कहीं। ठीक है, मैं एक पढ़ाई में अच्छा ऑफिसर नहीं था, मैं हमेशा बताऊंगा, आज भी बताऊंगा, आज से 50 साल बाद भी बताऊंगा। बट जिस चीज में अच्छा था, रोप, पीटी, इसमें आई वाज वेरी फैंटास्टिक, आई वाज रियली गुड, एंड दैट इज हाउ माय लाइफ वाज, मतलब इन एकेडमी। yes sir. So you mentioned that you were good in sports, this sports wala thing sir. Sir, so generally there are female candidates also. स्पोर्ट्स नहीं यार, पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग। Yes sir, correct sir, PT sir. Sir, so this female candidate sir, the female cadets generally sir NDA में आजकल आ रही है, and we have recently seen 10+2 BTech Navy has also opened female. So sir, during your time NOC courses were there, even NOC extended, special NOCs. So sir, how were their training? क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे candidates हैं, female candidates who are aspiring for OT and other training academies. So sir, how are those challenges which you have seen during your tenure as a cadet as well as an instructor? All the ladies, please join the Navy. See, Navy believes in preserving the femininity. आप अगर एज अ लेडी एंटर कर रही हैं तो नेवी विल मेक श्योर कि आप लेडी ही रहें, क्योंकि आपके हिसाब से वो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को नीचे कर देती है, सब कुछ नीचे कर देती है, सो दैट आपका जो नारित्व है, आपका जो स्त्रीत्व है, योर फेमिनाइन नेचर शुड बी प्रिजर्व्ड। और बहुत अच्छा रहता है लेडी ऑफिसर्स, दे डू, पूरे बाल उनके अच्छे से बंधे रहते हैं, पिन लगी रहती है, दे अप्लाई गुड परफ्यूम, बहुत अच्छा सिस्टम है लड़कियों का, अमेजिंग, आई लव इट, वेरी गुड, कुडोज टू नेवी, 100/100। बट इफ यू जॉइन द आर्मी, भाई आर्मी विल मेक यू अ मैन। इफ यू आर अ लेडी, व्हेन यू पास आउट, प्रोबेबली योर बॉयफ्रेंड विल लीव यू, बिकॉज आप मर्द लगोगे बिल्कुल, आपके बाल काट के दे टेक द मैन आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो नेवी
एयरफोर्स एक साइड, they let you remain a girl, they let you remain a lady. Army makes you a man, even if you are a lady. They don't care. तो ओटीए में स्टैंडर्ड्स मेल से थोड़े कम है, बट तब भी इन कंपैरिजन टू अदर टू सर्विसेज ओटीए में स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई फॉर लेडीज. बट लड़कियों के लिए अच्छा है यार. नेवी में इट इज वेरी गुड. ट्रेनिंग इज वेरी डिसेंट ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग. Correct, sir. Sir, so how was that experience, sir, during your commissioning time? And more importantly, what was your first appointment? And since you mentioned an injury, sir, so let us know what exactly things an officer should take care into consideration. जो newly commissioned officers होते हैं, किस किस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग देयर इनिशियल डेज, क्योंकि सब जोशीले होते हैं. एंड वॉट नॉट सर, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे. एंड इससे पहले कुछ दिन पहले हमने कर्नल धर्मेंद्र पांडे का भी इंटरव्यू लिया था. उनमें भी उन्होंने ही मैंशन रिगार्डिंग अ वेरी गुड एनेक्डोट अबाउट हिज इनिशियल पोस्टिंग एज अ लेफ्टिनेंट. सर, डू मैंशन अबाउट योर स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ सर्विस. स्टार्टिंग ऑफ सर्विस में व्हेन यू बिकम सब लेफ्टिनेंट, तो नेवी में क्या होता है ना, आपकी कोई औकात रहती है नहीं. ट्रस्ट मी, वो पीओपी के दिन यू आर अ हीरो. पीओपी के बाद व्हेन यू गो ऑन बोर्ड शिप, हमें ना आलू और प्याज के बोरे उठाने पड़ते हैं एज अ सी ट्रेनिंग. ठीक है, तो लिटरली एक ऐसा टाइम था जब मेरी पीठ पे आलू का बोरा होता था, और माँ साहब जो सूबेदार मेजर रैंक का तो जवान होते हैं, माँ साहब जो होते हैं वो कहते थे वेरी गुड साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आइए साहब रख दीजिए. तो दीज थिंग्स आर डन टू मेक यू हम्बल. यू एक्चुअली सर्व ऑन बोर्ड शिप्स, यू डू पेंटिंग्स. ठीक है, आप साफ सफाई करते हो, डी कॉकरोचिंग करते हो, टॉयलेट भी कई बार आपको साफ करना पड़ता है. तो यू डू दीज थिंग्स सो दैट यू बिकम हम्बल. ठीक है, आप जवानों के अंडर रहते हो, जवानों को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार साहब लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो यू अर्न देयर रेस्पेक्ट. सो आई वाज ऑन बोर्ड आने शार्दुल. तो वहां पे क्या हुआ था, एक बहुत सारी ऑपरेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि फायर फाइटिंग एक्सरसाइज होती है. ठीक है, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. उस एक्सरसाइज में आई वाज गोइंग डाउन शिप से, मैं नीचे बंक पे जा रहा था. तो जो लैडर होती है, उस लैडर से मैं उतर रहा था एंड आई हैड स्लिप्ड. तो मैं सीधा 90 डिग्री थप से गिरा था नीचे, एंड आई हैड अ बैकबोन इंजरी. तो बैकबोन में मेरी इंजरी हुई. उसके बाद मैं शिप से बाहर आ गया था, एंड दैट इज हाउ आई वाज पोस्टेड इन आईएनएस पेंडुर्ती एज स्टाफ ऑफिसर. तो that was a very unfortunate event which happened with me, and I had to be out from the general service executive entry. Sir, like for those all the audience, there is, when you enter GSX branch, that is executive branch, you have to do a course called SAPO course. Sir, do mention about this whole SAPO course, sir, like, and do mention about the full form and what exactly an executive officer does in a ship or submarines or wherever he or she is posted. क्योंकि काफी candidates are preparing for this. Okay. Yes, sir. नहीं बड़ी, आई हैड नॉट डन दिस साफो कोर्स. मैं तो नहीं किया था. अच्छा सर, बिकॉज़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स करते हैं सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ करते हैं उनका. मैं उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था ऑन बोर्ड सी ट्रेनिंग में ही हो गया था. करेक्ट सर. तो मुझे वहीं से बाहर कर लिया गया था, और मेरी स्पेशलाइजेशन चेंज हो गई थी फ्रॉम जनरल सर्विस टू एटीसी. करेक्ट सर. दैट इज हाउ माय स्पेशलाइजेशन चेंज. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सर, जितना आपने देखा समझा है इन पर्टिकुलरली नेवी, सो दैट कैंडिडेट कैन टेक अ नोट ऑफ इट. क्योंकि लोग कहते हैं गूगल में आंसर्स की कमी है, तो आपसे डायरेक्टली सुन लेंगे तो दे कैन टेक इट. You're right, absolutely. See, what infantry is for army, fighter pilot is for air force, that is what executive is for the navy. ठीक है, जैसे इन्फेंट्री है वो मेन आर्म है आर्मी की, उसके अराउंड घूमती है आर्मी सर्विस को, यू नो, एसी, ऑर्डिनेंस, आर्टिलरी, सब इन्फेंट्री के अराउंड घूमती है उसको सपोर्ट करने के लिए, इंजीनियर्स. वैसे नेवी में यार एग्जीक्यूटिव शिप्स, हमारे प्राइम यू नो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वॉरशिप्स, उसको सपोर्ट करती है एविएशन, उसको सपोर्ट करती है एटीसी. ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं मरीन कमांडोज. नेवी का चीफ कभी मरीन कमांडो नहीं बन सकता. नेवी का चीफ कभी यू नो क्या बोलते हैं उसे, एटीसी ऑफिसर नहीं बन सकता. ठीक है, सो आपको शिप्स ही चलाने पड़ेंगे. शिप्स मेन काम है नेवी का. तो दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डू. एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड्स, वहां से एग्जीक्यूटिव वर्ड आया है. किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना, दैट इज द वर्क ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. Technical officers support you, executive officers execute the operations. So, ये मेन काम होता है एग्जीक्यूटिव का. एग्जीक्यूटिव में बहुत सारी ब्रांचेस होती है. मरीन कमांडोज एग्जीक्यूटिव में होते हैं, एटीसी होते हैं, पायलट्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, और जनरल सर्विस. तो जो जनरल सर्विस के ऑफिसर होते हैं वो शिप चलाते हैं, मतलब शिप्स पे उनकी ड्यूटी आती है, शिप्स के ऑपरेशंस देखते हैं. और बाकी जो ये ऑफिसर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के, लॉजिस्टिक्स, वो भी एग्जीक्यूटिव में ही है. तो ये सभी एग्जीक्यूटिव की ब्रांच है, बट मेन जो आर्म है वो है जीएस, जनरल सर्विस. करेक्ट. जो शिप के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं. यस सर, राइटली मेंशन सर.
Sir, so you were posted as an ATC officer in the subsequent days. So, sir, how an ATC officer life is during his or her tenure? Yeah, trust me, ATC officer is job is very responsible and very hectic. ठीक है, मैं यार आई वुड लाइक टू गिव ऑल क्रेडिट्स टू ऑल द एटीसी ऑफिसर्स फॉर कीपिंग आवर स्काईज सेफ. ठीक है, आप जब एयरक्राफ्ट से जाते हो तो ये मेक श्योर करना कि जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो सामने से टकरा ना जाए. ठीक है, आप दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में एक सेपरेशन मेंटेन हो. दिस इज अ वेरी टफ थिंग. Continuously for 6 to 7 hours, ATC officers, maintain, eye contact on the radar, and they continuously see कि एयरक्राफ्ट्स कोलाइड ना कर जाए और ये जो ट्रैफिक है वो मेंटेन रहे, एयर ट्रैफिक. इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, वेरी हेक्टिक जॉब, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, स्पेशली इन द एयरफोर्स एंड द नेवी. वेरी टफ. राइटली सेड सर. सर, सो हाउ ATC, लाइक सर आपने इवन हेलीकॉप्टर में काफ़ी फ्लाई किया है, planes में भी. सर, जनरली देर इज़ अ कॉमन मिसकंसेप्शन. देर आर रिसेंटली दिस ब्रांच कॉल्ड नेवल एयर ऑपरेशन हैज़ केम अप, विच इज़ नथिंग बट ऑब्जर्वर, सर. If we see clearly. So, sir, what exactly is the difference between observer, naval air operations branch and exactly ATC? मतलब अगर एकदम बारीकी से देखा जाए. Got it. See, एक होता है पायलट, वो तो सबको पता है. पायलट जो पायलट है, प्लेन को उड़ाता है. उसके बाद क्या होता है यार, पायलट के पास होते हैं ऑब्जर्वर्स जो सारी प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे वो चार्ट की मैपिंग करते हैं, है ना. सबमरीन कहाँ से देखेंगे, वो कहाँ पे वो क्या टारगेट डिप्लॉयमेंट करेंगे. ठीक है, तो जितने ऑपरेशंस होते हैं वो ऑब्जर्वर्स करते हैं. ठीक, उनका काम प्लेन उड़ाना नहीं होता है, बट प्लेन में रहते हैं एंड दे एक्चुअली ऑपरेट ऑल द ऑपरेशन. तो इट इज वेरी टफ जॉब यार. पहले उनको ऑब्जर्वर्स कहते थे, अब उनको नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर कहते हैं. और एटीसी ऑफिसर्स क्या करते हैं, वो ग्राउंड पे रहते हैं. एक टावर होता है, ठीक है, टावर पे वो बैठे रहते हैं. टावर पे शीशे लगे होते हैं, शीशे से देखते हैं कौन एयरक्राफ्ट कब आ रहा है, कहां से आ रहा है. और उनके बगल में एक रडार होता है. उस रडार पे वो देखते रहते हैं कि एयरक्राफ्ट्स के बीच सेपरेशन तो मेंटेन है, कोई किसी से टकरा तो नहीं रहा है. अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ था ना, ये एक्सीडेंट हुआ था यूएस में, जहां पे यूएस नेवी का एक हेलीकॉप्टर था, वो एक एयरक्राफ्ट से टकरा गया. अभी आप लोगों ने देखा होगा, शायद ध्यान नहीं दिया होगा. यस सर, यस सर. है ना. तो दैट इज व्हाट ATC officers do. They ensure that your skies are safe, there are no accidents, and all the aircrafts are flying in their zone. और जैसे एयरक्राफ्ट अपने जोन से हट के ट्रैवल करता है, तुरंत एयरफोर्स डिस्पैच हो जाती है. हमारे फाइटर पायलट्स रहते हैं एयरफोर्स के तैनात हमेशा. दे गो एयरबॉर्न एंड दे इंश्योर कि वो जाए आपके पास और आपको वार्निंग दे. ठीक है, कि आप किसी नो फ्लाई जोन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या आप अपने फ्लाइट पाथ से भटक गए हो. तो एग्जैक्ट प्रोसीजर इज देयर इन दिस कंट्री टू इंश्योर दैट दीस थिंग्स डोंट हैपन. Correct, sir. Sir, so basically ATC in a nutshell, it is one of the branches which regulates the flight safety. More importantly, not only of Navy but also for the civilian airlines, because there are a lot of airports where defense airports are there but civil airlines are also using. So, sir, एग्जैक्टली correct, sir. पुणे में यार एयरफोर्स हैंडल करती है, गोवा में नेवी हैंडल करती है, विशाखापट्टनम में नेवी हैंडल करती है, Yes, sir. पोर्ट ब्लेयर का सिविल ट्रैफिक नेवी हैंडल करती है. सो यू आर राइट. Yes, sir. Sir, so generally you as an ATC officer, you have served for around a year or so. Sir, so in between you might have faced a lot of areas which you find challenging as an ATC officer. So is there any challenges which you remembered, like जो सबसे ज़्यादा challenging लगा आपको? Yeah, trust me, when I was in Air Force Academy, ATC was amazing because वहाँ पे आपको करीब 1 से 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है and it is very amazing. When I went to Goa, मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए जब गोवा गया, तो it was so challenging कि यार हर every 30-40 सेकंड there used to be an aircraft. हर 1 मिनट 2 मिनट पे एक एयरक्राफ्ट आपके सामने आता है टेक ऑफ के लिए. आपको कंटिन्यूअसली बोलते रहना पड़ता है अगले 6 से 7 घंटे तक. फॉर 6 to 7 hours you will be speaking continuously. आपने मेरी एक मीम देखा होगा ना, जिसमें मैं कह रहा हूँ I fly to 904 after departure, turn right, climb to 6,000 feet, intercept radio 310, contact radar 129.5, है ना. ये चीज आप कॉन्टिन्यूसली 7 घंटे बोलते रहते हो. I mean, और आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि देयर इज एक 3D ग्लोब बना हुआ है और आप दिमाग से सोच रहे होते हो कि यहां से एयरक्राफ्ट आ रहा है, यहां से एयरक्राफ्ट आ रहा है, सेपरेशन कैसे मेंटेन करोगे. दैट इज अ ह्यूमंगस टास्क एंड दीज गाइज, हैट्स ऑफ टू देम. उनको कुछ विदेशों में क्या होता है ना, स्ट्रेस अलाउंस मिलता है किसी ऑफिसर्स को. इंडिया में स्ट्रेस अलाउंस का कॉन्सेप्ट नहीं है.
But these guys are taking a lot of stress. मैंने तो ज्यादा काम नहीं किया इस एटीसी में, बिकॉज आई वाज पोस्टेड टू प्रोजेक्ट NISS, वो एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है नेवी का. बट जितना मैंने काम किया, आई सॉ these guys deserve a lot of respect for keeping our skies safe. True, sir. So means it was more or less like है ना wholesome package, challenges, good moments, and more importantly जो आप अभी रील्स एंड कंटेंट्स बना रहे हो, बाय डिफॉल्ट ट्रेट है आपके कि आपकी पूरी सर्विस उसी में गई है. So sir, Exactly. sir, so when all this thing came up and when you got recommended 3 times and all this ATC and academy instructor, so sir, one thing which is very common is your communication skills, sir, which is very flauntless. हमने आपके कंटेंट्स में भी देखा है, काफ़ी कैंडिडेट्स या काफ़ी सारे जो ऑडियंस यहाँ बैठे हैं, they might have related this कि सर की communication skill is way too advanced than anyone else. So sir, what is the basic few elements which you worked on this thing and कैसे किसी को एक decent level of communication develop करना चाहिए? Thank you, Pallav, but for being so kind in choosing words for me. But I believe that communication skills of my postmates, अगर आप मुझसे कोई बात करोगे, it is far better. मेरा एक postmate यार, लेफ्टिनेंट कमांडर जीत जेकब थॉमस, what a goddamn he had a communication skill यार. All the Malayalis, Pallav, I have seen, these Malayalis they have amazing communication skills. उनका accent थोड़ा अलग हो सकता है, but they are very good at articulating and they are very good at English. Coming on to me, my communication skill can be attributed to my squadron. मेरा squadron था मल्ला squad. I'm a Falcon. तो Falcons क्या है? They are very good at, उनको gentleman squad कहते हैं. तो ये हमारा tradition है यार, to speak well, to treat ladies properly, to escort them properly, to behave properly, to shave properly. ये मेरा tradition मेरे squad का है ना. To never, हम कभी stink नहीं करते किसी के सामने. If we go, we will not stink. We are the only squadron in our academy जिसको टॉयलेट बंद करके, आप जब टॉयलेट गए होंगे ना, वॉशरूम में आप नहाते जब होंगे मतलब, तो आपने देखा आपको गेट बंद करने की इजाजत नहीं होगी. क्या इजाजत थी? नहीं सर, हमारे स्क्वाड में नहीं थी सर. हाँ, किसी स्क्वाड में नहीं है, वो सिर्फ हमारे स्क्वाड में है कि हमारे स्क्वाड में आप गेट बंद करके नहा सकते हो. ठीक है, दैट इज बिकॉज वी आर कॉल्ड जेंटलमैन स्क्वाड. तो लैंग्वेज पे हमारी कमांड ठीक ठाक होती है बिकॉज वी फोकस ऑन डिबेट्स, डिक्लेमेशन, इस सब पे बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है. प्लस उस समय हमारे कमांडेंट थे वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान. ठीक है, तो वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान जो थे, ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. तो हमारी शाम में रोज डिबेटिंग क्लासेस होती थी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लासेस होती थी. सो दीज थिंग्स रियली played a crucial role in improving our communication skills as an officer. प्लस मतलब क्या होता है ना कि फौज में हर ऑफिसर की इंग्लिश अच्छी हो जाती है जाते ही. करेक्ट सर. हमारा जो डेली ऑर्डर होता है ना, डेली ऑर्डर जो होता है उसमें इंग्लिश ऐसी भर भर के दी रहती है कि उसको पढ़ पढ़ के ना जवानों की इंग्लिश भी इतनी अच्छी हो जाती है कि मैं क्या बताऊं. ये सर, ये तो है. करेक्ट सर. एकेडमी में सर ऑल द सेलर स्टाफ दे नो फार बेटर इंग्लिश देन एनीवन एल्स, एंड इवन कैंडिडेट से भी अच्छा जो रेकमेंड होकर आ रहे हैं वहां पे. ट्रू. कुछ सेलर्स को यार दे स्पीक सो गुड इंग्लिश. और एवरी नेवी इज लाइक दैट यार. नेवी इज अ कॉलोनियल सर्विस. वो हमने ब्रिटिश से इनहेरिट किया है. इंग्लिश हमारे ब्लड में है. ठीक है, फौज में आप गए हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. करेक्ट सर. सर सो यू मेंशन लाइक फौज में जाना इज इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश. सर जनरली आपने SSB में भी इंग्लिश में आपने दिया है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू हैव मेड इट थ्राइस. सो सर व्हाट आर दोज एरियाज जो आपने इनिशियल डेज में तैयारी करी ड्यूरिंग योर 12th स्टैंडर्ड, सो दैट विच मेड यू गेट रिकमेंडेड, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली नॉट ओनली रिकमेंडेड, यू वेर ऑल इंडिया रैंक 92. फॉर दोज हु डोंट नो, सर वॉज NDA ऑल इंडिया रैंक 92, और उस टाइम पे ऐसे रैंक लाना इट्स नेक्स्ट लेवल, बिकॉज वो एक टाइम था जब चीज़ें नहीं थी इतनी ईजिली एक्सेसिबल. ठीक है, तो यस सर, टेल अस दैट प्रिपरेशन ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर योर कम्युनिकेशन थिंग. यस, कम्युनिकेशन थिंग के लिए यार थैंक्स पल्लव, मेरी 2 रैंक ऊपर बताने के लिए. मैं ऑलरेडी रैंक 94 था वैसे. करेक्ट. ठीक है, सो नॉट 92 बट थैंक यू. सो इंग्लिश में यार एक न्यूज़पेपर आता है द हिंदू. मैं क्या करता था, द हिंदू का जो एडिटोरियल होता था, उस एडिटोरियल को मैं आईने के सामने, मिरर के सामने जोर जोर से पढ़ता था, सो दैट मेरी स्पीच क्लैरिटी हो. ठीक है, जब हम बोलते हैं ना, कई बार हमारे स्पीच में क्लैरिटी आनी चाहिए, उसके लिए न्यूज़पेपर को देख के एडिटोरियल को पढ़ता. तो दिस रियली हेल्प मी. और आज भी मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, प्लीज डू रीड द एडिटोरियल.
ऑफ द हिंदू, उसको पढ़ो, जोर जोर से बोलो, ठीक है, तो आपकी स्पीच क्लियर आएगी। तो मतलब दिस रियली है। करेक्ट सर। सर सो जो आपने ये बताया सर स्पीच वाले चीज़, सर जनरली पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पे उनका एजुकेशन इंग्लिश में नहीं है, दोज आर कमिंग फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, एंड जनरली देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अ सर्विस लाइक दोज आर इन सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स, सो दे गेट दिस कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमें ये चीज़ नहीं मिल रहा। सो सर व्हाट वुड यू सजेस्ट एज एन ऑफिसर एज वेल एज अ पर्सन हु इज़ फार बेटर नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, तो आपके क्या एडवाइजेस रहेंगे उस टीम उस जगह पे? सी इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, बट ट्रस्ट मी, इफ योर हार्ट इज ऑफ अ लीडर, अगर आपका दिल एक शेर का है, ठीक है, और आप सोचते एक टाइगर की तरह हो, ट्रस्ट मी, फौज इतनी बुद्धू नहीं है कि एक इंग्लिश बोलने वाले को सिर्फ ले लेगी। अगर आप इंग्लिश नहीं भी बोलते हो, आई हैव हैड वेरी कोस्टमेट्स, यू नो, फ्यू कोस्टमेट्स हु आर फ्रॉम हरियाणा, दे आर जाट, दे डोंट स्पीक गुड इंग्लिश, दोस डेज, अब तो बहुत अच्छी बोलते हैं वो, बट यार एवरीबडी थॉट दैट दे विल नॉट गेट रिकमेंडेड, ठीक है, बट यार उनके अंदर जो शेर दिल एटीट्यूड था, ठीक है, दैट नेवर से डाई एटीट्यूड, दैट स्पिरिट, ठीक है, दैट रियली हेल्प्स यू। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है, कोई बात नहीं, आप साइकोलॉजी में अच्छा कीजिए, स्क्रीनिंग बस आपको क्लियर करना है, क्योंकि उस दिन ना देखो साइकोलॉजिस्ट जीटीओ कुछ नहीं कर सकता। आप अगर पहले दिन क्लियर नहीं कर पाए ना, तो एसएसबी कैन नॉट हेल्प यू इन असेसिंग, आपका असेसमेंट ही नहीं होगा। पहले दिन तो आपको किसी भी तरह मार, चाहे झापड़ मार का आपको क्लियर करना पड़े, आपको क्लियर करना है किसी तरह, हुक और क्रुक, येन केन प्रकारेण, यू हैव टू क्लियर इट, ऑलराइट, एनी हाउ, फर्स्ट डे इज योर बेबी, सेकंड थर्ड फोर्थ डे एसएसबी पिच्स इन टू असेस यू, ठीक है, तो फर्स्ट डे यू आर ऑन योर ओन, पहले दिन आप कैसे भी करके क्लियर करो। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी साइकोलॉजी आपकी अच्छी है, आपने जीटीओ में अच्छा किया, आप इंटरव्यू अच्छा दे रहे हो, आपकी सोच अच्छी है, और एसएसबी में क्या होता है ना यार, आप देखो, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड इंटरव्यूअर, देयर आर 3 डोमेन्स, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जीटीओ में अच्छा किया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। व्हाट हैपेंस, आपने मानो तीनों में एवरेज परफॉर्म किया है, जीटीओ, साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू, लेकिन वो तीनों चीजें जो है ना, वो मैच करनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी से। वो जब कॉन्फ्रेंस के दिन बैठते हैं, तो वो जब अपना असेसमेंट सुनाते हैं, तो उनके असेसमेंट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि जो साइकोलॉजिस्ट ने असेस किया, वो जीटीओ बोल रहा नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं है, इसमें कोई जोश तो मुझे दिखा नहीं, वहां जोश दिख रहा था सर, बट वहां तो ये सर भाग गया था अपने कोर्समेट को छोड़ के, स्नेक रेस में पहले भाग गया था ये, इसको तो रेस खत्म करने की पड़ी थी। तो आप कैसे भी हो, अगर आपकी साइकोलॉजी मैच कर रही है, तो आप रिकमेंड हो जाओगे, ठीक है। सो इंग्लिश प्लेज अ की रोल, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है, तो भी आप आराम से क्लियर कर सकते हो, फौज आपको इंग्लिश सिखा देगी। अगर इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट होती ना, तो इतने ऑफिसरों के बच्चे कभी भी कॉन्फ्रेंस आउट नहीं होते, ठीक है। True, sir. Very rightly said, sir. Sir, so now we will be again going back to your NDA preparation days. Sir, what was your written preparation tips? क्योंकि when we were on a call and conversation, you mentioned आप written के लिए भी candidates को help करते हो अपने level में. So sir, generally what people should like do in terms of the written preparation, like general written preparation, चाहे वो NDA हो, CDS, AFCAT, क्योंकि अभी AFCAT आने वाली है 22nd को, and even NDA, CDS are coming up. For those who can take some tips, sir, what will be the tips? एफकैट के लिए यार मैं टिप्स नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज उसका मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इतना लकी नहीं था कि एफकैट दे पाऊं, क्योंकि उससे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था इंडिया में। करेक्ट सर। तो मैं कहां से एफकैट देता, लेकिन हाँ, सीडीएस की मुझे अच्छी नॉलेज है, ठीक है, एंड एनडीए की भी ठीक बहुत अच्छी नॉलेज है मुझे, आई कैन गाइड यू वेरी वेल। एनडीए के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो यार आर एस अग्रवाल को लो, उसको चाटो, व्हेन आई से चाटना, यू हैव टू फकिंग गॉट एम लिक इट अच्छे से, हाथ लो, पेन लो, एंड यू शुड बी एबल टू बीट द शिट आउट ऑफ दैट बुक। उस किताब का खून निकल जाना चाहिए यार, इतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है उस किताब। आर एस अग्रवाल गीता है, आर एस अग्रवाल को चाटो बैठ के, नंबर 1 आर एस अग्रवाल। सेकंड थिंग इज इंग्लिश, इफ योर इंग्लिश इज गुड, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन। देखो एनडीए में ये जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीसरी क्या है ये, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब छलावा है। आज तक किसी का सिलेक्शन हिस्ट्री और इसके बेसिस पे नहीं हुआ भाई, पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे। इंग्लिश एंड मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो आप क्लियर कर लोगे, और अगर आप साइंस साइड से हो तो आपके पास एज है, बिलीव मी साइंस गाइस, यू हैव एन एज। आर्ट्स के बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है, प्लीज गाइस आपके लिए बहुत टफ है, यू बेटर स्टार्ट डूइंग ग्रेजुएशन एंड प्रिपेयर फॉर सीडीएस। एनडीए बहुत कॉम्पिटेटिव है, मैथ्स नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, टफ है, आर्ट्स के बच्चों के लिए टफ है। सीडीएस की बात मैं बाद में बताऊंगा, मतलब श्रद्धा सीडीएस की ज्यादा लंबा हो रहा है।
नहीं सर, इट्स फाइन सर, यू कैन कंटिन्यू सर. ठीक है, सीडीएस के लिए यार थोड़ी टिप्स यार, वी विल टेल सम अदर टाइम, क्योंकि उसमें यस सर. बहुत अंदर जाना पड़ेगा. Yes sir, yes sir. बट है Sir, ना, बट for example, if you look back to your old days of 2011 and 12 when you cleared all these things, so what would you have suggested to your younger self in terms of written preparation? जो यहाँ काफ़ी candidates can relate with you कि ये 5 यंगर चीज़ों का ध्यान रखो कि हाँ कोई भी एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यंगर सेल्फ तो छोड़ो, मेरा खुद का छोटा भाई भी ऑफिसर है. ही इज इन इंडियन आर्मी, ही इज पोस्टेड इन सियाचिन, ही इज अ कैप्टन राइट नाउ. आई हैव कोच्ड माय यंगर ब्रदर. मैंने उसको, देखो यार, कोई भी बंदा जो है ना बहुत जनरल सीक्रेट ही बताएगा सोशल मीडिया पे. आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, जितने भी 45-48 बच्चे यहाँ पे हैं, अगर मुझे कोई कोचिंग चलानी है, आपको सीरियसली लगता है क्या मैं आपको सब चीजें फ्री में कोई बता देगा आपको? मतलब आप में बुद्धि लगाओ अपनी. चाहे आप आईएएस का एग्जाम दो, पीसीएस का एग्जाम दो, एसएसबी दो, एनडीए दो, आपको सच में लगता है कोई ट्रिक होती है जो ओपनली लोग बता देते हैं? होता है क्या ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको लोग जनरल चीजें बताते हैं और असली चीजें जो है आपको आईएएस वाले कोचिंग में ही बताते हैं. ठीक है, आपको जो एसएसबी वाले हैं वो भी बहुत जनरल चीजें बताते हैं, असली चीज आपको कोई नहीं बताएगा. स्पेशली जब एसएसबी के एसएसएल्स कोर्स करते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च से. sorry guys, I Yes sir. apologize. Yes sir. Am I visible? Yes sir, perfectly visible and audible sir. हाँ, तो जब ये कोर्स करते हैं वहां से डीआईपीआर से, सो उनको सब पता होता है कि ये बंदा क्यों क्लियर नहीं कर पा रहा है. दे नो कि आपकी साइकोलॉजी में क्या गड़बड़ी है. बट भाई दे विल नॉट टेल यू. आपको वो नकली चीजें नहीं बताएंगे कभी, क्योंकि वो इनजस्टिस हो जाएगा एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस के साथ. वो आपको हमेशा जनरल चीजें बताएंगे. कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, अच्छे से स्टोरी लिखो. बट आपको ये कभी नहीं बताएंगे यार कि इतनी स्लैंग डिग्री हैंडराइटिंग रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, दाएं रखो, 45 डिग्री मत लिखो, इससे लगता है कि बंदा बहुत इमोशनल है. कोई नहीं ऐसे बताता है. ठीक है, तो कोई इनजस्टिस नहीं करेगा सिलेक्शन प्रोसेस के साथ. नो ऑफिसर विल डू धोखाधड़ी विद द सिलेक्शन प्रोसेस. बट यस, दे विल गाइड यू. वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, बट सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा. ठीक है, दैट्स फॉर श्योर पल्लव. यस सर. सर सो जनरली आपने जैसे एक स्टार्टिंग में लाइन मेंशन करा, यू बिलोंग फ्रॉम इनिशियल डेज ऑफ लाइफ, है ना, यू बिलोंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली. सो सर जनरली पीपल फील दैट हम तो पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम फार्मिंग एरिया से रहे, व्हाट नॉट. सो सर व्हाट वुड यू सजेस्ट पर्सनली टू देम कि ये चीज़ तो पहले रखनी नहीं चाहिए सर, हम भी यही सजेस्ट करते हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताओगे आप? यार ट्रस्ट में, अगर आप गरीब हो, अगर आपके साथ कुछ दिक्कत है, तो ये हमेशा आपके फेवर में काम करती है चीजें. अगर आपके पापा नहीं है, आपकी मम्मी नहीं है, या आप कुछ बहुत गलत बैकग्राउंड से हो, जितना आपका बैकग्राउंड खराब होगा, कुछ गड़बड़ी होगी, उतना आपके लिए अच्छा है. ट्रस्ट मी, बिकॉज इंटरव्यूअर एंड द असेसर दे विल ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू. और जितना आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आप मेजर जनरल के बेटे हो, जितना अच्छा बैकग्राउंड रहेगा उतना चीजें आपके लिए टफ होंगी. सो इफ यू हैव सम हम्बल बैकग्राउंड, प्लीज डू गिव एसएसबी, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है. ट्रस्ट मी, आई हैव फेस्ड इट माई सेल्फ. मुझे मेरे बैकग्राउंड, मुझे मेरे जो हम्बल बैकग्राउंड से मैं आता हूं, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली. आज मैं किसी ऑफिसर का बेटा होता तो शायद मेरे लिए चीजें इतनी आसान नहीं होती. ठीक है, ट्रू सर, वेरी राइटली सेड सर, दैट इट इज लाइटली अ सॉफ्ट कॉर्नर. सो सर जनरली पीपल फेस दिस क्वेरी, इवन काफ़ी सारे लोग ने जो फॉर्म भरा है यहाँ पे. सर हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंड फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, क्योंकि सर आपने भी बहुत बार फेस किया होगा बीइंग अ हार्डकोर रिपीटर, रिकमेंडेड बैक टू बैक. सो सर हाउ वाज दिस, एंड मोर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली दैट, आपने सर्विस लाइफ में भी काफ़ी कुछ फेस किया. बेस्ड ऑन दैट सर. देखो, बड़ी लाइफ इज लाइक अ साइन वेव. ऐसे साइन वेव जानते हो ना, दैट इज द ट्रूथ. ठीक है, चाहे आप द्रौपदी को देख लो, द्रौपदी किसकी बहन थी पता है ना? भगवान श्री कृष्ण की बहन थी. तो जब भगवान श्री कृष्ण की साड़ी भरी सभा में कोई उतार सकता है, तो मेरी इज्जत कमांडिंग ऑफिसर बिल्कुल उतार सकता है गालियों से. तो मुझे दिमाग में चीजें फिट बैठनी चाहिए कि आई एम नो वन. अगर भगवान श्री राम की पत्नी को कोई किडनैप कर सकता है, तो भैया मेरे से तो कोई मेरी घड़ी आराम से बीच चौराहे पे बंदूक के दम पे चुरा सकता है. ठीक है, तो पहली बात तो एक्सेप्ट फेलियर, कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. वो आएगा ही आएगा, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता. चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ देख लो, हुसैन की लाइफ देख लो, सबकी लाइफ टफ रही है. प्रॉफिट मोहम्मद ने भी बहुत कुछ झेला अपनी जिंदगी में. नोबडीज लाइफ वाज वेरी रोजी. ठीक है, मैं
आज अपने कोर्समेट को देखता हूं, मेरे कोर्समेट न्यूक्लियर सबमरीन पे हैं। अगर आप न्यूक्लियर सबमरीन पे रहोगे तो आपके बाल झड़ जाते हैं, आपको यहां से हेयर फॉल होता है, आप यहां से टकले हो जाते हो। आप यहां से टकले हो जाते हो तो आपकी बंदी छोड़ के चली जाती है, कहती है तुम अभी 26 के हो, दिखते 35 के हो। तो भाई दुख कभी कम नहीं होंगे, रिजेक्शन तो आपको झेलना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑफिसर रहो कि जवान रहो कि कुछ नहीं रहो। ठीक है, तो रिजेक्शंस को गले लगाओ पहले तो, ब्लडी गॉडडैम रिजेक्शन आ जा, रिजेक्ट हो गए, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रिजेक्शन से बिल्कुल डरना नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भगवान आपको रिजेक्शन से मुक्ति नहीं दे सकता है, नो गॉड। बट यस, एक चीज श्योर है कि एवरी रिजेक्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ एन अपकमिंग सिलेक्शन। आपका रिजेक्शन हुआ है, ये एक इंडिकेशन है कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट होने वाले। जैसे भी रात है ना, हम रात को पॉडकास्ट कर रहे हैं, इट इज एन इंडिकेशन कि अब सवेरा आने वाला है यार, अगले 8 घंटे 10 घंटे में सवेरा आएगा। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर रिजेक्टेड, मेक श्योर यू आर मोटिवेटेड कि भाई अब बहुत अच्छी चीज आने वाली है जीवन में। ट्रू सर। सो दिस मोटिवेशन आई होप है ना, ये आपके अपकमिंग पूरे लाइफ भर काम आए कि रिजेक्शंस को गले लगाओ और आगे बढ़ो, बिकॉज दैट वुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर सक्सेस एंड सिलेक्शन। चाहे आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली पर्टिकुलरली बाउंडेड बाय दिस एसएसबी थिंग, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। ऑल यार राइट। मैं भी तो रिजेक्ट हुआ हूं, मैं तो ऑफिसर होने के बाद मैं इंटेलिजेंस कोर्स में मेरा नाम नहीं जा पाया। सर। मैंने भी अप्लाई किया इंटेलिजेंस के लिए, बट माय यूनिट डिड नॉट सेंड मी, आई कैन नॉट सक्सीड, तभी तो मैंने सर्विस छोड़ी। सर। ठीक है, यस सर। तो ऐसे बहुत सारे आपके जो जिन कर्नल धर्मेंद्र हैं जैसे, यस सर। तो यार उनका भी सपना होगा ब्रिगेडियर बनना, तो ब्रिगेडियर शायद नहीं बन पाए होंगे। उनके सीनियर का सपना बनना होगा मेजर जनरल बनना, कोई मेजर जनरल नहीं बन पाता है ना। करेक्ट। हमारे यहाँ बहुत लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जो फाइट करते हैं, यार आर्मी चीफ मैं बनूं, आर्मी चीफ नहीं बन पाते वो। तो रिजेक्शन तो यार इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट हैपेंस एट एवरी रैंक। ट्रू सर। ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। All right, sir. Very good interactions. Sir, one last question before we hand over the mic to all the audience and to all the queries. So, sir, one question is coming up from my mind, and more importantly, even few candidates have also asked through the form which we have shared. So, sir, you joined as a officer for a permanent commission, and generally you did a training of 4 years. Then you served for some years. So, sir, how was that feeling when you retired, in the initial days of your service? And generally, people feel कि इसके आगे क्या होगा, क्योंकि many candidates are out here who are preparing for short service commissioned officers. So sir, what will be those areas which you are personally overcoming and you have overcome, and आपने अपने पोस्ट सर्विस लाइफ में अभी कैसे अपने चीज़ों को हैंडल किया एंड कैसे मैनेज किया? थैंक यू पल्लव फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, फौज को पहली बात तो रोजगार का साधन बनाना आप लोग छोड़ दो। अगर आप रोजगार के लिए जा रहे हो ना कि एम्प्लॉयमेंट जॉब, डोंट कम, बिकॉज ऐसे लोग कभी भी फौज के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे यार। यू नो, एक मूवी है लंडन हैज फॉलन, किसी ने देखी है? लंडन हैज फॉलन, यू हैव सीन? सर आई हैव नॉट सीन सर। ओके, एक मूवी है यार, उसमें 2 हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, एक जा रहा होता है प्रेसिडेंट का, उसके पीछे जा रहा होता है उसकी जो प्रोटेक्शन ग्रुप होता है उसका, हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए। तो क्या होता है ना, हेलीकॉप्टर्स के फ्लेयर पीछे से खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और दुश्मन मिसाइल फायर कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर पे। तो पता लास्ट ऑर्डर क्या होता है, जो पीछे वाला हेलीकॉप्टर होता है उसको लास्ट कॉल जाती है, ठीक है, उसका कुछ कोड नेम होता है चार्ली 2 अल्फा 2, उसे कहते हैं अल्फा 2 सैक्रिफाइस। एंड जो लास्ट मिसाइल जारी होती है तो उस प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए उसके पीछे जो हेलीकॉप्टर होता है वो मिसाइल के बीच में आ जाता है एंड ब्लास्ट कर जाता है, एंड दैट इज हाउ प्रेसिडेंट इज सेव्ड। सो फौज इज ऑल अबाउट यार प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री, दैट इज फर्स्ट थिंग। तुम अगर मुझे सैलरी नहीं भी देते ना, अगर तुम मुझे सैलरी नहीं भी देते एंड तुम मुझे कहते कि 10,000 की सैलरी है एक सब लेफ्टिनेंट की, आई वुड स्टिल हैव हैड जॉइन। मैंने फौज को भी पैसों के लिए ज्वाइन नहीं की, आई जॉइन इट फॉर पैशन। तो जब मुझे लगा कि यार मुझे इंटेलिजेंस ब्रांच नहीं मिल पा रही है, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे ज्यादा छोड़ने में दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज मेरे लिए पेंशन, एक फिक्स्ड सैलरी, एक परमानेंट कमीशन, ये सब इतना मैटर नहीं करता है। आप लोग के लिए मैटर नहीं करना चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो आईएएस है, आईपीएस है, सीएपीएफ है, प्लीज आप ज्वाइन करो, बहुत अच्छी सर्विस है, ये सब बहुत पैसा है, यू विल हैव लॉट ऑफ पावर। बट पैसों की दृष्टि से कभी फौज को देखना मत, मेरी सी गुजारिश है आपसे, है ना। एंड ट्रस्ट मी, आप फौज में बहुत अच्छा करोगे। आप पैसों के बारे में सोचना छोड़ दोगे ना, यू विल डू गुड इन फौज। इट इज एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। Rightly mentioned, sir, and very well explained throughout all these questions which you have answered, and we are very honored to have you on board. More importantly,
from starting from your NDA experiences till your last post retirement is something which many officers don't want to share, and they are hesitant to share, but you have shared it with the lucent and lucid way of language so that candidates can relate with them. More importantly, जो Gen Z terms use होते हैं उसके through relate करना is something which is challenging for a lot of officers these days. So you have very well explained, and I hope all the candidates found it very enriching. So sir, now I would like all the audience and to put up their questions so that हम आगे बढ़े, और काफ़ी लोग के और भी queries है forms के through which we will be taking over. So any candidates who have got any queries, audience, candidates, members, whosoever have joined, and bare minimum condition is please turn on your cameras so that आप लोग का face live आए, है ना? ठीक है, all right. Yes, please go ahead. SSG, क्या है नाम आपका, and please address your query. Jain sir, this is Cadet Sai Sherman, and I'm a current ex-junior wing naval cadet as well. So sir, I belong from Tamil Nadu, and I'm currently pursuing my BA honors from St. Xavier's College, Ranchi, and I'm an ex-PCM student. So sir, basically आपने जैसे बोला कि आपका फर्स्ट डे आईएनए में, इंडियन नेवल एकेडमी में था, तो सब वो थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर सकते हो कि व्हाट इफ अगर कोई कैडेट सेलेक्ट होते हैं थ्रू एनडीए या फिर आइदर थ्रू सीडीएस, तो फर्स्ट डे कैसा रहता है आईएनए में? फर्स्ट डे इन एवरी एकेडमी इज वेरी गुड. दे ट्रीट यू वेरी नाइसली, क्योंकि पहले 15 दिन को हम हनीमून पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस समय अगर आप एकेडमी छोड़ते हो तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता है. तो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि कैडेट्स के साथ कुछ भी बुरा बर्ताव मत करो, बहुत अच्छा उनको दिखाओ कि एकेडमी बहुत अच्छी जगह है. ठीक है, तो 15 दिन आपको कोई परेशान नहीं करता है. 15 दिन के बाद से ना आपके पैसे लगने शुरू हो जाते हैं. अब अगर आप छोड़ोगे ना तो आपको पैसा देना पड़ेगा. उसके बाद लोग अपना असली रूप दिखाते हैं. दे स्टार्ट स्क्रूइंग यू योर हैप्पीनेस. पहले 15 दिन इज वेरी गुड यार. यू गो टू एकेडमी, आराम से खाना खाओ, बहुत हंस हंस के बात करेंगे सीनियर्स. इट्स वेरी गुड, जॉली, यू गोना लव इट. बहुत अच्छा है. And sir, there's one more question sir. Through C certificates, तो sir eligibility और criteria तो उसमें होते हैं कि जैसे 60% प्लस रहता है. तो सर अगर मेरे को, मैं आर्मी विंग से अभी करंट, मैं पहले जूनियर विंग में रह चुका हूँ, जूनियर वारंट ऑफिसर नेवल विंग में. तो अभी मैं करंटली आर्मी विंग में हूँ. तो ए और बी सर्टिफिकेट मैंने किया है नेवल विंग से. अभी यहाँ पे मेरा फर्स्ट ईयर है, तो मैं यहाँ से अभी 3 साल और आगे करना चाहता हूँ, एक्सटेंड करूंगा संजीविया से आर्मी विंग में. तो मेरे को अगर इसमें से जाना होगा तो सी सर्टिफिकेट से आर्मी विंग का रहेगा. तो सर वेदर रिगार्डिंग अबाउट मीन्स एनसीसी, वेदर रिगार्डिंग अबाउट मीन्स क्या बोले आपका नेवी विंग हो, एयर विंग हो या आर्मी विंग हो, तो इन तीनों को हटा करके अगर हम लोग सी सर्टिफिकेट देते हैं सीडीएस में, तो सर क्या वो उस चीज का हम लोग को फायदा मिल सकता है सर रिगार्डिंग? अगर हम तो उस चीज में सर मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आता कि क्योंकि अभी मैंने देखा कि कल्ट एसएसबी भी है इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारा अपना वो अचीवमेंट्स डालते जाते हैं, तो उन्हीं के थ्रू मैंने देखा. और आपको तो मैं पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ सिंस फ्रॉम 2 years. तो वही चीज मेरे को जानना था कि सर सी सर्टिफिकेट जो होता है तो वो इसमें कैसे काम कर सकता है? जो एक आपका टेक्निकल एंट्री होता है और एक नॉन टेक्निकल एंट्री होता है, तो और एक वॉरफील्ड एंट्री, तो मेरे फादर सब कर चुके हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो सर इससे कुछ रिफ्लेक्ट कर सकता है? मेरे फादर जेसीओ थे. बड़ी यार देखो, एनसीसी का आपको फायदा हमेशा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. पहली बात तो आपकी पर्सनालिटी एनहांस हो गई है, आपको परेड करना आता है, आपको बोलना आता है, सीधे खड़े होना आता है. एवरी टाइम यू नो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर पर्सनालिटी थ्रू आउट एसएसबी. रही बात ऑफिशियल एनसीसी एंट्री की, वो तो यार जहां से आप सी सर्टिफिकेट करोगे, जैसे आपने अभी आर्मी से की है तो आप आर्मी की एंट्री नहीं जाओगे यार, वहीं पे आपको लीवे मिलेगा. उसमें पीछे आपने नेवी से किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सी सर्टिफिकेट आपने कहां से किया उससे फर्क पड़ता है. ठीक है, आप नेवी से कर रहे हो तो नेवी में आपको फर्क पड़ेगा. बट हाँ, आपकी वो चीज हमेशा इंटरव्यू में मैटर करेगी कि आपको नेवी का भी ज्ञान है. ये चीज आपकी बर्बाद नहीं गई कहीं पे. इट विल हेल्प यू. बट ऑफिशियली फॉर्म भरते समय आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो. अगर आप आर्मी से सी सर्टिफिकेट आपने किया है तो रिजर्वेशन वाला जो क्राइटेरिया है, जो स्पेशल एंट्री है, वो डिपेंड करता है किस सर्विस की सी सर्टिफिकेट ली है. उसी सर्विस में आप जा सकते हो. जहां तक मुझे पता है, मेरी टाइम तक पॉलिसी थी. अभी जो एग्जैक्ट पॉलिसी है, यू विल हैव टू एक बार एनसीसी की वेबसाइट आपको देखना पड़ेगा. यस सर.
और आपको फायदा And मिलेगा sir, डेफिनेटली। yes. एंड सर देयर इज द लास्ट क्वेश्चन। सर जैसे बोला जाता है, हमारे कभी सीनियर है, वो अभी आईएमए में उनका सिलेक्शन हुआ, तो वो जब एक बार आए तो वो उनका कहना था कि जैसे कोई भी आईएनए हो, इंडियन नेवल एकेडमी, अगर स्पेशल एंट्री हो, नॉन टेक्निकल एंट्री, या फिर विदाउट रिटर्न आपका अगर सीधा आपको एसएसबी में बैठा दिया जाता है, तो वहां पे ऐसा मीन्स कुछ टाइप का सर बोले कि वो डिस्क्रिमिनेशन भी मे बी होता है कि आप ऐसे स्पेशल एंट्री से आए हो, वेयर एज जो दूसरे लोग जो होते हैं वो आपके रिटर्न के थ्रू एंड देन इंटरव्यू दे के आते, पर आप तो स्पेशल एंट्री के ही थ्रू आ रहे हो, तो इसमें कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है ऐसा? यू मीन एकेडमी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं कैडेट्स में? यस सर, यस सर। ओके सी, हमारे साथ एक वो भी कैडेट होते हैं CW से, कहते हैं कमीशन वर्दी, जो सेलर्स से या जवानों से ऑफिसर्स बन के आते हैं, SSB क्लियर करके आते हैं। ट्रस्ट मी, हम उन्हें बहुत इज्जत से उनसे बात करते हैं, हम उन्हें अपना सीनियर मानते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। वो जवान है, ठीक है, उसने जवान की वर्दी पहनी थी, अब वो ऑफिसर हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, नथिंग लाइक दैट। हाँ, पर्सनल लेवल पे आपको किसी का मजाक उड़ाना है तो आप किसी का भी उड़ा लो, इसको कह दो तुम इस एंट्री से आए हो, वो तो पर्सनल चीज है आपकी। बट ऐसा ऑफिशियली कुछ नहीं होता है, एवरीवन इज कंसिडर्ड इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। बट हाँ, बच्चे आपस में उड़ाते हैं, मैं तो सैनिक स्कूल का हूँ, तू RMC का है, RMC वाले कहेंगे तू RMS का है, वो तो यार पर्सनल चीज है, वो तो बच्चे करते हैं यार, किड्स डू दैट, इट डजंट हैपन इन अकेडमी। यस सर। All right. Okay. So great यार. So requesting all the audience है ना, so that make sure that आप अपना questions को short and crisp रखिए and don't ask too many personal questions, because देखो ये सारे basic questions है, so that आप लोग ये बहुत easily address हो जाते हैं. See, to answer all your questions, there is this NCC entry. If you do from Air Force wing, you get eligible for all the three services, like all the three services: Army, Navy, Air Force. Navy का करते हो तो Navy and Army, and Army का करते हो तो only Army special entry. ठीक है, एंड देर इज ऑल्सो दिस स्पेशल एंट्री व्हेन यू डायरेक्टली अप्लाई थ्रू DG रिक्रूटिंग एंड यू गेट PC फॉर IMA एंट्री. वो काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है दैट यू कैन कोऑर्डिनेट विथ मी एंड आई विल शेयर यू ऑल द थिंग्स. एंड कमिंग टू योर फादर, इफ योर फादर इज फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, व्हाट्सएवर बैकग्राउंड, डजेंट मैटर, आप जो हो वो हो. जैसे सर ने बताया, आप जिस भी बैकग्राउंड से उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो तो इट बिकम्स लिटिल मोर चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ योर ओन सेल्फ. ठीक है, आपके फादर के बारे में पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है. ठीक है, एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट, सी डायरेक्ट एंट्री हो, रिटर्न हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है एकेडमी के अंदर, बट जो भीड़ आती है SSB में रिपोर्टिंग में, दैट इज़ ऑब्वियसली अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर. आपने देखा होगा है ना, NCC एंट्री में क्या है, सब लोग C सर्टिफिकेट कर रहे हैं, A B ग्रेड लेकर आ रहे हैं. ठीक है, और डायरेक्ट रिटर्न एंट्री में मेहनत वाले आ रहे हैं, है ना, या जिनका क्लियर हुआ है. ऑब्वियस बात है, भीड़ होगी, थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ दिखेगी कि हाँ उसमें नंबर ऑफ स्क्रीनिंग रेशियो इज़ डिफरेंट, एंड ये ऑब्वियसली होता है. सर ने भी रिलेट किया होगा, NDA एंट्री में और TES एंट्रीज़ में थोड़ी भीड़ आती है रिटर्न और डायरेक्ट एंट्रीज में. सो इट्स वेरी इजी. ठीक है, और फॉर ऑल द ऑडियंस गाइस, मेक योर क्वेश्चन वेरी क्रिस्प. ठीक है, ज़्यादा लंबा आप मत खींचो, क्योंकि देर आर मोर देन 100+ क्वेरीज विच वी हैव, विच वी कांट एड्रेस टू बी ऑनेस्ट, बट वी विल टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतनु जी. हेलो सर. सर माय क्वेश्चन इज लाइक, मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से कंप्लीट की है एंड ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच. सो रिसेंटली मेरा जो है नेवी एंड आर्मी दोनों जो है कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है. सो आई वांट टू सी दैट व्हाइल इन द इंटरव्यू दे आस्क मी लाइक why you are opting for the direct entries and why you are not opting for the CDS, NDA, why not clearing the written examination, why opting for the direct entries. So my interview went on psychology based, only on the psychology, and GTO went well, sir, and I was able to complete my VAT and SRT, total 50s SRTs and all 60 VATs, and all went well. But in the interview I got nervous. Even in the 33 SSB board, Navy board, I was able to do well, but in the conference when they asked me, so I got nervous by seeing the most of the people around at a single time. Then after 10 days only, I got that army entry. So this got nervous. I got tense in the interview. So how to tackle this situation? Okay, आपको exact tackle क्या करना है इसमें? I understood. You got आपको nervousness tackle कैसे करनी है? This is what you want to ask. Yes, sir. And the interview on the psychology is. See, buddy, remember one thing, confidence comes from practice. ठीक है, जैसे आज अगर आप मुझे कहो कि प्लेन उड़ाना है,
मैंने कभी नहीं उड़ाया, ठीक है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो वैसे ही आपको, आप किसके, अपने, आप पीसीएम साइड के हो या फ्रॉम Yes, Odisha, sir. पीसीएम? Odisha. नहीं, पीसीएम से हो आप, फिजिक्स PCMB. केमिस्ट्री मैथ, है ना, पीसीएम भी। Yes. तो यार जो आर्ट्स का बंदा होगा उसको कभी मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके जैसा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बड़ी इसको तैयार करो, यू नो, प्रिपेयर दिस आंसर कि व्हाई यू वांट टू जॉइन विद द डायरेक्ट एंट्री, ठीक है, आपने रिटर्न का एग्जाम क्यों नहीं दिया। फाइंड एन आंसर, अपने अंदर एक क्वेरी बोलो, उसको लिखो, आंसर को उसको रट लो अच्छे से, अच्छे कीवर्ड के साथ, ऐसा ऐसा रीजन है। उस समय जब आप बोलते हो ना तो आप हकला जाओगे, फंबल करोगे, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको लिख के तैयार रखने हैं कि यार दीज क्वेश्चंस दे आर गोना आस्क एंड आई एम गोना आंसर दीज थिंग्स, ठीक है। उसकी अच्छी इंग्लिश के साथ लिखो, उसको याद करो, ठीक है, कि आपके दिमाग में पता होना चाहिए आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो उस एंट्री से, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन, ठीक है, देन यू विल नॉट फंबल। वहीं पे जाके सोचोगे, एक तो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है नहीं, है ना, हम हिंदी लैंग्वेज से आते हैं, तो फंबल तो करोगे ही वहां पे जाके, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, बड़ी आपको कुछ क्वेश्चंस पहले से पता होने चाहिए, कुछ तो पूछेंगे आज। अब गलती जो हुई है इसको जाके लिखना, अगली एसएसबी में पूछेंगे आपसे, यू शुड नॉट फंबल दैट टाइम, ठीक है। True. Well, rightly said. Next question. Mohit ji. Jai Hind, sir. Jai Hind. I would like to ask, sir, as you have told now, ki you were always one-man army. So in your group, you might have seen that they are not cooperative. So at that time, how you were gaining the self-confidence and how you make yourself satisfied that you are doing good enough? Okay. See, one man army, first of all, is not a good thing. It's not a good thing. You should never be one man army. You should always be a team man. ठीक है. So मैंने अपनी एसएसबी से गलती से सीखा. उसके बाद अकेडमी में जाके I was really a team man. मैं सबकी बातें सुनता था. You know, SSB I only cleared because मेरे पास और कुछ अच्छी क्वालिटीज रही होंगी. बट एसएसबी के टाइम में वन मैन आर्मी होना बहुत गलत चीज थी मेरी. मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ. बट यस, वो मेरा नेचर था, तो आई हैड टू बी ट्रू टू माई सेल्फ. मैं जैसा हूं वैसा ही आई हैड टू शो. ठीक है, तो इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ. वन मैन आर्मी कभी नहीं होना चाहिए. ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी अ टीम मैन. तो कुछ नहीं यार, एसएसबी में तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, मुझे तो सहना पड़ा. बट अकेडमी जाके यार आई लर्नड इट. पहली बात तो यार, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ आप हिंदी में बात करो. फर्स्ट थिंग आई लर्नड अ लेसन कि सामने का जैसा एनवायरमेंट है ना, उसकी जैसे बन जाओ. ठीक है, जैसे मैं चम्मच और उससे काटी छुरी से खाता हूं, बट यार जब मैं आपके घर आऊंगा खाने के लिए, तो यार मैं हाथ से खाऊंगा, है ना. जब आप सिलेक्ट हो के मुझे पार्टी दोगे, कहोगे सब खाने खाना ये, मैं आऊंगा यार, मैं हाथ से खाऊंगा. मैं दूंगा, आप वहां कैसे खा रहे हैं, केले के पत्ते पे खा रहे हैं तो केले के पत्ते पे खाऊंगा. ये चीजें धीरे धीरे मैंने सीखी, सर्विस में आके अकेडमी जाके सीखी, बहुत सारे कल्चर से मैं मिंगल अप हुआ, तो आई लर्न इट. बट एसएसबी टाइम तक यार आई वाज नॉट लाइक दैट. ठीक है, ये सब मेरी पर्सनालिटी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी. Thank you, sir. Correct. Next question, Khushi Singh. Good evening. Jai Hind, sir. Sir, I think you remember me or not, but I text you a lot of time in Instagram and asking a lots of questions. So again, I have one more question. So before going for SSB, which book we need to refer? Like people used to say, when what you want to become, be the personality you want to become. So what kind of a book we need to read if we are going for SSB before that? Okay, thank you, Khushiyar. Thanks for the question, but I have never been a good reader. It is also a shortcoming of my personality. I have never been a good reader. मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी एसएसबी के लिए. I was a very raw man. मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ के जाता था और बस मेरे अंदर जोश था. तो ऐसा कुछ नहीं है खुशी. वहां पे देखो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है. ठीक है, आपका इंटरव्यू में आपसे पर्सनल जो आप बताती हो जिसमें आप अच्छे हो, उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे मेरी मम्मी इंग्लिश की प्रोफेसर थी, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क मी इंग्लिश के क्वेश्चंस. माय डैड वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड. आप अगर बता दोगे वहां पे कि आई एम ए वेरी गुड रीडर, मैंने इतनी इतनी बुक पढ़ी है, तो दे विल आस्क यू अबाउट शेक्सपियर, दे विल आस्क यू. अब आप कह दोगे सर तो मैं किसान हूं, मैं तो कभी किताब देखी नहीं जीवन में, तो दे आर नॉट गोना ट्रबल यू फॉर दैट. ठीक है, तो अपनी खुशी के लिए आप पढ़ते रहो. रीडिंग इज अ गुड हैबिट. बट ऐसा कुछ नहीं है कि एसएसबी के लिए आपको जोशीली किताबें पढ़नी है, विंग्स ऑफ फायर पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है. रीड एवरीथिंग, व्हाटएवर यू विल मेंशन, उसी के अराउंड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे.
So one more question. How was your experience in Air Force and Navy? लवली लवली क्वेश्चन गाइस। अगर आपको लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, प्लीज ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। 7 बजे लोग जाते हैं, 1 बजे लंच करके आते हैं, 3 बजे के बाद खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, शाम को 6 बजे घर पत्नी के साथ। अगर आप फाइटर पायलट है, कोई पायलट नहीं हो तो, या एटीसी ऑफिसर नहीं हो तो, लाइफ इज वेरी गुड। बट इन द नेवी द वर्क कल्चर इज वर्स्ट, वेरी बैड। इट इज अ जोक। हेल और हेवन की डेफिनेशन है कि किसी ने पूछा था कि सर हेवन कहाँ होता है, तो कहा लिखा था कहीं पे कि हेवन इज अ प्लेस जहां पे बंदोबस्त आर्मी का हो, ठीक है, वर्क कल्चर एयरफोर्स का हो और पोस्टिंग्स नेवी की हो। दैट प्लेस इज हेवन। और हेल किसे कहते हैं? जहां पे पोस्टिंग्स आर्मी की हो, बंदोबस्त एयरफोर्स का हो और वर्क कल्चर नेवी का हो, तो दैट इज हेल। ठीक है, तो वर्क कल्चर नेवी का बहुत बुरा है, पोस्टिंग्स अच्छी हैं, वर्क कल्चर इज बैड, एंड एयरफोर्स का वर्क कल्चर इज अमेजिंग। यू आर गोना हैव अ ग्रेट लाइफ। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। तो आई सॉ दैट इन एयरफोर्स एकेडमी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वर्क कल्चर। बट कुछ नहीं कर सकते यार, अपनी सर्विस है। वर्क कल्चर तो बहुत टफ है यार नेवी का। Thank you, sir. Jai Hind, sir. राइटली सेड सर, एंड आपने शायद बहुत ज़्यादा ही अच्छे से आंसर कर दी है वाला क्वेश्चन। ओके सर, सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप। हाय निशांत, गुड इवनिंग। जैन सर, I'm निशांत राघव दिस साइड। सर मेरा सिंपल क्वेश्चन था कि जीडी मतलब इनहैंस कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन प्रैक्टिस दैट जीडी विद योर फ्रेंड्स, तो सर वो हेल्प करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में, या फिर अकेले ही मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से वो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी? निशांत, आर यू फ्रॉम एनसीसी? यस सर। यार सी योर पावर ऑफ कमांड इज, वो चिल्ला के मुझे बता रही है कि यू आर फ्रॉम एनसीसी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर पीओसी डज। ठीक है, योर पर्सनालिटी डज। कि आप साड़ी भी पहन लो ना तो लगोगे कि भाई ये आदमी यार ये है तो कुछ अलग बंदा है ना। निशांत यार, योर पर्सनालिटी इज वेरी गुड। सी, मुझे तो नहीं पता था आप कहां से हो। सो दैट इज व्हाट यू डू। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है, यू मेंटेन इट, व्हाटएवर पीओसी इज देयर, मेंटेन योर वोकैबुलरी। ठीक है, और राइट टाइम पे इंटरवेंशन करना सीखो। सर्जिकल इंटरवेंशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्राई टू कैच पीपल। सो वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। ओके सर। हां, ट्राई टू कैच व्हेन द इंटरव्यू। हां, बताओ सर, व्हेन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क अबाउट योर वीकनेस, सो सर उसका आंसर मतलब कैसे करें? जैसे सर मैंने डांसिंग को वीकनेस लिखा था अभी, सो सर उसका आंसर? सी, आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको भी पता है कि एक आदमी क्या क्या वीकनेस होती है। ठीक है, सी दे आर आल्सो मैन, दे हैव सैट ऑन योर चेयर, दे हैव सिट ऑन अ चेयर, सो दे नो एवरीथिंग यार। तो उनको बता दो वीकनेस। बहुत तो क्या करते हैं ना, अपनी अच्छाई को ही वीकनेस में बताने की कोशिश करते हैं, है ना। तो डोंट डू दैट। जो आपको सच में वीकनेस लगती है, प्रेजेंटेबल वीकनेस, बुरी वीकनेसेस नहीं, तो उसको प्लीज डेफिनेटली बताओ। वीकनेस को जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा था सर, अ मैन मैं तो गलतियों का पुतला हूं। अ मैन इज आइडल ऑफ मिस्टेक्स। मेरे अंदर तो गलतियां भरी पड़ी हैं। आई थिंक इफ आई कीप ऑन टेलिंग यू तो शायद तक पूरा इंटरव्यू निकल जाए, बट अच्छाई मेरी बहुत कम है। गलतियां सर बहुत है सर, व्हाट यू कैन इमेजिन, गलतियां ही गलतियां। तो वो समझ गया, तो उसने कहा अच्छाई बता दो। अब मुझे अच्छाई बताने का मौका मिल गया। ठीक है, तो गलतियां तो मैंने कह दी सर, सब गलतियां मेरे में, आई एम अ मैन ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, कोई उसमें गलती तो मैं करता हूं, बस एक अच्छाई है, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक्स, ट्राई टू इम्प्रूव इट अपॉन। ये मेरी अच्छाई है, बाकी गलतियां तो भरी है सर मेरे। तो ट्राई, गलतियों को आलिंगन करो यार, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड आगे बढ़ो। पहली बात आपने देखा होगा, जब भी किसी का मजाक उड़ता है ना कहीं पे, जब वो बंदा मीम में, इंस्टाग्राम पे वो चीज एक्सेप्ट कर लेता ना, जैसे मानो यार मेरी एक कान ना हो, अब मैं कान को छुपा के वीडियो बनाऊंगा ना, सब कहेंगे सर कान तो हटाओ, हाथ तो हटाओ, कान दिखाओ अपना। बट मैं अगर कान को दिखा के वीडियो बनाऊंगा ना, है ना, तो देखना मेरा मजाक कोई नहीं उड़ा है। ठीक है, यस सर। जब आप गलतियों को खुद से एक्सेप्ट कर लो, तो बता देते हो लोगों को, तो लोगों को मजा नहीं आता आपका मजाक उड़ाना, और आपकी गलतियों में किसी को इंटरेस्ट नहीं रह जाता। दैट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है निशांत? Yes, sir. Explained very well, sर. And I hope many candidates have got it. Sir, you are saying that off guard वाला part, sir, एक बार। हाँ यार, सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। व्हेनेवर आप देख रहे हो कहीं पे
कि आप जीडी की बात कर रहे हैं, जीडी में आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिले बोलने की, दैट यू Yes हैव sir, टू yes सी। sir. जैसे लोगों का एनर्जी लेवल डाउन होता है चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाते, है ना, वो आपको एक एसेस करना पड़ेगा, और उस समय अपनी पीओसी से ऐसा अटैक करो कि ब्लडी दे आर लाइक दिस, वाह निशांत, हु इज दिस गाय। और जब तक वो आपको देखना शुरू, बिकॉज ट्रस्ट मी, मुझे 1 सेकंड लगा एनालाइज करने में बंदा है कौन, पहले ये देखो, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ट्रस्ट मी, इट विल वर्क इन योर फेवर। और ये टिप्स मैं दूसरों को भी दूंगा कि यू नो, बी लाइक निशांत एंड हैव अ गुड पीओसी। गुड पीओसी ऑलवेज हेल्प्स यू। So मतलब सर आपका मतलब है कि when you try to initiate in GD, your voice must be loud and as much as clear also. लाउड तो नहीं, बट हाँ, पीओसी इज डिफरेंट थिंग। और पावर ऑफ कमांड होती है, पेट से आवाज आती है, ठीक है, एक Okay, लीडर की sir. आवाज आती है, Okay. उसको लाउड नहीं करना है, बट एक असर्शन के साथ बोलना है, और तब बोलना है जब दूसरों की एनर्जी लेवल डाउन हो, ठीक है, Okay, वो sir. आप कर लोगे, वो प्रैक्टिस से आ जाती है। Okay, sir. Thank you, sir. बाकी बड़ी So before we take any further question, there is a small announcement. So I hope many candidates out here might be feeling कि हाँ यार सर तो काफ़ी अच्छा चीज़ बता रहे हैं. So as you all know, whenever we invite any guest speaker, there are some kind of surprises. So there is a very good surprise which is coming, है ना? And there were a lot of protocols which we had to follow, and one such protocol which we follow, and now Lieutenant Purushark sir is right here. So there is a small announcement. So we are launching a very new program with one and only our Lieutenant Purushark, Suyal, retired sir. And आप देख सकते हो उनकी way of explaining things is way too different. And sir will be heading a program which is very extraordinary in the whole cult SSB branch. मतलब पूरे डिपार्टमेंट में सबसे डिफरेंट प्रोग्राम है वो, और सबसे यूनिक नीच के साथ आता है. एंड मतलब इतने डिस्कशंस के बाद सर हमने फैसला किया कि ये चीज़ काफ़ी हद तक कैंडिडेट्स को इतना बेनिफिट देने वाली है, इफ़ दे आर एट द वेरी बेसिक ऑफ देयर प्रिपरेशन और एट देयर मिडिल और एट देयर एडवांस फेज ऑफ प्रिपरेशन. क्योंकि ये एक ऐसी प्रोग्राम है जो काफ़ी लोग नेगलेक्ट करते हैं, है ना. लोग सोचते हैं कि हाँ यार हम अपना एकदम नॉलेज बढ़िया करेंगे, हम जीके पढ़ के जाएंगे नेशनल इंटरनेशनल, है ना, हम पूरा टीएटी वैट एसआरटी में डूब जाएंगे और हम रिकमेंड हो जाएंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे दे माइट गेट फंबल समवेयर इन द नरेशन, they might get somewhere stuck while giving lecture it, they might not get any good points or how to project a point which is necessary as per an angle desired from you as a candidate in the GD or GP. So sir हमने और सबने मिलके एक काफ़ी दिन से एक प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले थे, that is none other than संवाद कम्युनिकेशन बैच, और that will be particularly headed by Lieutenant Purushark Suyal, retired, and more importantly not only that he will be taking over all the classes everything. But अभी आप लोग को लग रहा होगा ये प्रोग्राम तो सर बोल दिया आपने, लॉन्च कर दिया, इसकी फीस कितनी होगी? एनी गेसेस, है ना? आई वुड लाइक कि किसी का कोई गेस है तो गेस अपने अपने यहाँ चैट्स में लिखिए. किसको लग रहा है कितना फीस होगा, या कुछ और भी जानना है? पहले एक बार देखते हैं ऑडियंस पोल, बिकॉज कल्ट ऑलवेज कम्स अ वेरी डिफरेंटली एंड इनोवेटिवली. 50 रुपये 1499, ओके. 1500, अच्छा डिफरेंस ₹1 का, ओके. एनीवन एल्स? 199, 4500, 500, 3500. ओके. किसी ने डेज के बारे में पूछा ही नहीं. आप लोग यार वही है ना, प्री रिक्वेसाइट्स के बिना जाते हो कि कितने दिन का है सर ये तो बता दो. सर भी सोच रहे होंगे कैसे कैंडिडेट्स हैं, है ना, बिना सोचे समझे बोल देते हैं और फिर कहते रेकमेंड हो जाए. तो अच्छा 1 मंथ 2 मंथ, ठीक है 2 मंथ्स, ओके गुड, ऑल राइट. अच्छा एक बात बताओ, आपने जीतू भैया की एक लाइन सुनी होगी, 7 दिन में कुछ चीज़ सीखी जा सकती है और 21 दिन में उसे हैबिट बनाई जा सकती है. सही बात है, सही बात है. अच्छा मैंने हिंट दिया है, आंसर नहीं दिया. एनीवन एल्स? देखते हैं फटाफट फटाफट, डाउट्स काफ़ी सारे. 21 दिन, 14 days, 21 days. Good, good, good. All right. So, ladies and gentlemen, all eyes on the screen and all eyes on, and all ears on your phone, mic or audio, not wherever. So, we are launching a program named Samvad Communication Program, for which the number of days is 15 days, right? And any guesses for the last fees? कितना होगा? 4000. सर इतने में तो SSB हो जाती है. 3500. सर ये तो ऑलरेडी चल रहा है ना, मैं उन्हें से मैं नहीं देता टू बी ऑनेस्ट. 15 डेज की 3000, 3, 2999,
नो? ओके, चलो मैं ही आप लोग के लिए नेगोशिएट कर लेता हूँ। सर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 2999 थोड़ा कम कर दें हम, 2499, व्हाट डू यू से? फिर भी ज़्यादा है ना सर? थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है सर। ओके, 2499 ज़्यादा है, ओके। 2K सर, 2000 सर लास्ट डन करते हैं। सर महंगा लग रहा है अभी भी कैंडिडेट्स को शायद, या अभी भी इट्स ओके ना सर, चलता है? 15 डेज का 2000 एंड और सी नो वन एल्स, ऑल आवर एडमिन्स टीम विल बी टेकिंग अदर क्लासेस, बट लेफ्टिनेंट पुरुषारक सर की जो यूनिक लर्निंग चीज़ें हैं वो चीज़ आप सीखोगे। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सो फॉर द प्राइस ऑफ दिस बैच इज none other than 1799? No. It's 1499 for 15 days, exclusively taken by Lieutenant Purushark, Suyal, retired, for everything starting from your communication skills is considered, where we will learn about listening, speaking, reading, writing, not only these basics. We will learn about diplomacy, we will learn about art of speaking, where to speak, what to speak, how to speak, है ना? Even आप लोग इतने एक्सपर्टाइज बन जाओगे कि कल को आप किसी से हाथ भी मांगने जाओगे तो यू विल गेट, है ना, दैट जोन की हाँ यार मैंने तो सर से क्लासेस ली है ना? देयर विल बी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी। सो सर विल बी टेकिंग ओवर दिस प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट करें? एनी डेट्स आप लोग से ही पूछ लेते हैं, सबके डाउट्स लेंगे, डोंट वरी। एक बार फटाफट ये वी हैव टू से दिस, कब से स्टार्ट करें? 25 1 मार्च, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे आए ना आए, है ना, फिर इसी डिलेमा में रह जाएंगे, फिर SSB के बाद बताएंगे सर ये रह गया था। काफ़ी क्वेरीज आते हैं, मोर देन 100 ऑफ क्वेरीज आर देयर, होल टेलीग्राम इज फ्लडेड ऑफ ऑल द एडमिन्स, ठीक है? ओके, सो गाइज द डेट इज फिक्स्ड, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 24th of February, राइट? दैट इज़ द मंडे, जिसमें आपका एफकेट विल बी परफेक्टली डन, ठीक है? कोई ऐसे डिलेज नहीं रहेंगे। दिस इज अ प्रोग्राम वेल क्राफ्टेड बाय नॉट ओनली सर but with me and other admins, officer faculties, Colonel Pandey, and there are many other officers who have crafted this, particularly curated only for candidates, ठीक है? और इसमें सर का ही एक्सपर्टाइज रहेगा, we will not be interfering anywhere, because जो एक्सपर्टाइज आप इनसे लोगे वो शायद कहीं और से नहीं मिलेगा, because there are many other places where you will be roaming here and there कि हाँ हम कुछ कोर्स कर लेते हैं, कुछ बी से किसी कोर्स का नाम है ना, BAC करके, ठीक है? एंड देयर विल बी वेराइटी ऑफ कोर्सेस एंड वॉट नॉट। What you have to do is sit back, relax, ठीक है? कोई नहीं, CJ CAT 25th को है, नो प्रॉब्लम, है ना? आप एक दिन मत आना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ऑल क्लासेस ओके। लेट मी टेल यू, ऑल द क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड, राइट? क्लासेस टाइमिंग विल बी, इट विल बी नोटिफाइड, इट विल बी मोर और लेस इन द इवनिंग, और सर विल ऑल्सो मैंशन, एंड द ड्यूरेशन फॉर द क्लास विल बी 1 to 1.5 hours, ठीक है? इफ नीडेड यू कैन ऑल्सो क्लैरिफाई योर डाउट्स पोस्ट योर प्रोग्राम ऑल्सो, राइट? सबको समझ में आया? द रेस्ट पोस्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स यू विल गेट इट, ठीक है? कुछ आफ्टर अ डे और सो, राइट? अगर किसी को भी आना मतलब एनरोल करना है, फील फ्री टू DM एट द नंबर विच इज़ ऑलरेडी बीन देयर, ठीक है? टेलीग्राम चैनल है, इंस्टा में है, एवरीवेयर यू कैन टेक्स्ट अस, राइट? टू एनरोल फॉर संवाद कम्युनिकेशन बैच, राइट? वी हैव गॉट वेराइटी ऑफ बैचेस फॉर SSB लाइक Psych only, Psych ++, GTO, तबाही, संपूर्ण, Psych and what not. Even कर्नल पांडे के अल्फा, ब्रावो, सिग्मा, चार्ली, all those programs are running successfully. आप आए दिन देख रहे हो, recommend हो रहे, तो उसके पीछे कुछ तो प्रिंसिपल होगा which we are following, ठीक है? एंड अगर हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लेकर आ रहे तो वी हैव टू डू समथिंग, राइट? तो दैट इज़ वॉट वी विल चार्जिंग। एंड सर ने भी स्टार्टिंग में एक लाइन कहा, देयर इज़ नो फ्री मील इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में सिर्फ आपके फादर और मदर का प्यार इज़ विदाउट एनी चार्जेस, रेस्ट एवरीथिंग इज़ चार्ज, स्टार्टिंग फ्रॉम योर, है ना, प्यार वाली ज़िंदगी या फिर किसी और की ज़िंदगी, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सर, ओवर टू यू। Thank you, buddy. Thanks, Pallav, yaar, for being so kind, and thank you guys for joining us. जो मैंने बातें बताई हैं, please implement them in your life. फौज needs you. Please remember, फौज को आपकी जरूरत है, ठीक है? और आपको फौज की जरूरत है, understood? So definitely आपका सिलेक्शन होगा। आपका नहीं होगा तो किसका होगा यार? हम पाकिस्तान और US से थोड़ी लाएंगे बंदे, यहीं से तो बंदे लेने हमें, यही जवान, यही किसान, यहीं के बच्चे आ रहे हैं, यही जो है हमारे पास, ठीक है? आर्मी आपकी है, आप आर्मी के हो, ठीक है? तो सिलेक्शन होना ही होना है। अब इट इज अ कॉम्पिटिटिव थिंग, कौन कितना अच्छा करता है यार, दैट इज तो आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है?
All the best to all of you. Pallab, thank you so much, buddy. Anything else from my side? Yes, sir. Sir, we have got some queries, sir. I guess let's clarify that then. Sir, I hope Okay. you are available right now, sir. Mm-hmm. Yes, sir. So let's take the question. Aditi, please go ahead. Jain sir, Samati. So I want to know what are the best books and coaching institutes you would recommend for the preparation for the mathematics sections of the NDA exam or for simply the written exam? And also, how did you approach mathematics preparation during your time? Thank you, lady. See, RS Agrawal, NDA, NCRT, that's it. Nothing आपको कोई कोचिंग की जरूरत है नहीं. बट स्टिल आपको कोचिंग लेनी है तो ऑल कोचिंग्स आर गुड. हर कोचिंग अच्छी है, ठीक है. बट आई सजेस्ट कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, अगर आप साइंस साइड के हो, तो कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको. आप खुद से पढ़ सकते हो. बट आप अगर आलसी हो मेरी तरह, जैसे आई एम आलसी गाय, ठीक है, आई नीड अ पुश, मुझे टारगेट चाहिए होता है, ऐसा कुछ चाहिए होता है, तो प्लीज ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रिटन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. सब बंदे अच्छे हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली किसी को एक्सेस नहीं किया है. मैं पर्सनली कोचिंग नहीं ली. मैंने एक जगह ली थी, कर्नल राणा से ली थी थोड़े दिनों के लिए देहरादून में. वो शायद ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं चलाते हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट. बट यस, आर एस अग्रवाल इज द गीता. प्रैक्टिस इट एंड यू शैल बी थ्रू. All right. I hope your query is addressed. Over to you, Omkar ji. Good evening. गुड इवनिंग सर. मेरा एक क्वेश्चन था कि सर आई वांटेड टू नो दैट फॉर सीडीएस रिटर्न हाउ शुड वी प्रिपेयर, एंड सर सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द माइंडसेट दैट इज रिक्वायर्ड टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर. माइंडसेट इज, यार वो पहली चीज पूछी कि व्हाई यू वांट टू जॉइन. यू शुड हैव एन आंसर फॉर दैट. व्हाई आई वांट टू जॉइन, ठीक है. व्हाई आई वांट टू जॉइन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए. आप अगर पल्ली कोई लड़की है यार, अंजलि, उसको प्रपोज कर रहे हो, व्हाई आर यू प्रपोजिंग, इतनी क्लैरिटी तो आपको होनी चाहिए ना. बिकॉज यू लव अंजलि, यू वांट टू स्पेंड लाइफ विद अंजलि. सिमिलरली, व्हाई यू वांट टू जॉइन द इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स. यू लव यूनिफॉर्म, यू लव पैसा, कुछ तो रीजन होगा ना. सो ऑनेस्टली पुट योर रीजन ऑन बुक पेपर, राइट इट डाउन, ठीक है. जो आपके मन में आता है उसको आत्मसात करो. ये कल को कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए भाई आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. दैट इज फर्स्ट थिंग. माइंडसेट ऐसा कुछ नहीं होता है यार कि यू हैव टू बी कमांडो. सब नॉर्मल लोग होते हैं यार. पल्लव देखो नॉर्मल आदमी, मैं देखो नॉर्मल आदमी, हम सब नॉर्मल बंदे हैं यार. नॉर्मल पीपल आते हैं, ठीक है. वी नो सम सुपर हीरोज. ऑलराइट. सेकंड थिंग, सीडीएस क्लियर कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालाइज ऑल द पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो. उसके बाद सीएपीएफ, सीडीएस एंड सीएसई, इन सब के पीवाईक्यूज में जो स्टेटमेंट्स और कीवर्ड्स हैं, इनके नोट्स बनाओ. इनके नोट्स बनाने के बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री की है पूनम दलाल दहिया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम, ऑलराइट, इकोनॉमी के हैं मृणाल सर के वीडियोस, ठीक है. ये सब जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, उसके बाद इसको पढ़ो. इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, जो पीवाईक्यू से आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा. उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप बुक्स को देखना शुरू करोगे, और बुक में जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप नेग्लेक्ट करना सीख जाओ, ठीक है. इससे क्या होगा, आप काम की चीजें पढ़ोगे, उसके बाद आप फिर से पीवाईक्यू पे आओ और पीवाईक्यू को सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है. इसको सॉल्व करने के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओ, ठीक है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो. करंट अफेयर्स के लिए प्लीज रीड न्यूज़पेपर एवरी डे इफ यू कैन रीड. इफ यू कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर, देन देयर इज अ मैगजीन कॉल्ड पीटी 365. ये सीडीएस के बच्चे नहीं करते हैं, सिविल सर्विस के बच्चे जनरली करते हैं, ठीक है. तो ट्रस्ट मी, सीडीएस का बच्चा वो बिल्कुल गोल हो जाता है करंट अफेयर्स में. इतना टफ नहीं है. पीटी 365 पढ़ो, उसमें करंट से रिविजन आईएएस की 365 आती है, उनकी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है. उसको पढ़ो, ठीक है. उसमें आपको करंट से रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. अंडरस्टूड. वहां पे उसको पढ़ो और आपका करंट अफेयर्स डन है. लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, तो यू आर डन विद इट. Correct, sir. I hope your question is addressed. All right, Krishna ji, good evening. Good evening, sir. Sir, in starting you mentioned about a hack in screening. Sir, can you please bring a light on it? हाँ यस बड़ी यार, वो ना एक्चुअली क्या होगा, अगर मैं यहाँ बता दूंगा ना, उस 16 के 16 आप रिकमेंड हो जाओगे, ट्रस्ट मी. Sir, और ये 16 अगर गलती से आपके ग्रुप में पड़ गए ना बड़ी, तो ट्रस्ट मी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सबके पास वही तलवार आ गई. तो मैं इसको थोड़ा सीक्रेट रखूंगा, आई विल रिवील इट, क्योंकि यार ये चीजें ना मैंने लाइफ I recently got screened out from Bangalore. I take
मैं वो सोच रहा हूँ यार, मैं उसको कैसे बताऊँ, आई विल फॉर्मुलेट अ प्रोग्राम फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि वो चीज मैं सबको बता नहीं सकता, क्योंकि वो ना फिर एसएसबी को अपना लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत दिक्कत हो जाएगी, ट्रस्ट में पड़ेगी, दूसरों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी वो, क्योंकि गलत जैसे ट्रिक बतानी नहीं चाहिए किसी को, वो मैं उसी को बताऊंगा जिसको मैं देखूंगा उसमें कुछ बात है, आई विल असेस देम, बट मैं बताऊंगा, क्योंकि ये ट्रिक मैंने अपने भाई को बताई थी, मेरे भाई ने पहली अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर किया, वो ऑफिसर है ना। आई डेफिनेटली टेल। ज्वाइन द प्रोग्राम, है ना, संवाद बैच सर का ही है ना। अच्छा, संवाद में इसको रखना है क्या पल्लव? वी विल हैव टू कीप इट। सर वी कैन कीप इट एट द एंड, है ना, सिंस ठीक देयर है, इज एन बफर डे। ठीक है, आई स्पीक टू यू यार, इसको कैसे फॉर्मुलेट करना है। करेक्ट सर, वी विल डू Yeah, इट। we will speak to it. So don't worry, ओमकार, once you are in touch with me, अगर मैंने बता दिया, अगर मैंने आपको ओमकार, आप ओमकार हो, क्या नाम आपका? कृष्णा। Krishna, Krishna. कृष्णा, कृष्णा यार, how many times you have given SSB? Sir, I am in currently I'm in class 12, so I have appeared for one time only. Okay, how's your English? Sir, it's good, fine. मुझे 10 लाइन काउ पे बोल के दिखाओ, tell me about Cow? हाँ, Okay. Uh, uh, cow is cow. Cow gives us milk. Cow is a. अटक गया. Okay. Cow is a habitable part of our environment. It gives us milk, which is very essential for our body and the various functioning of our cells. Secondly, in our religious context, cow is considered as a mother. Okay, very good. Yeah. got it, कृष्णा, I got your point, ठीक है, आपने देखा ना काउ पे बोलना कितना टफ हो जाता है, सडनली कोई दे देना, तो काउ जैसा एक टॉपिक भी आपको एक बार एक शॉक दे, दैट व्हाट द हेल, आई हैव टू स्पीक ऑन दिस, सेम थिंग हैपेंस, ठीक है, सो यू विल बी एबल टू क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है, वंस आई टेल यू दैट थिंग, आई थिंक यू कैन फॉर्मुलेट सेंटेंसेस, भाई मैं देखना चाह रहा था कि आप सेंटेंस फॉर्मुलेट कर पाते हो कि नहीं, अगर आप दिमाग में सेंटेंस को फॉर्मुलेट कर सकते हो, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बता दूंगा, वो कुछ नहीं है, वो 3-4 दिन का प्रोग्राम है, विद प्रैक्टिस यू विल लर्न, एंड आई कैन अश्योर यू कि 70% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे स्क्रीनिंग होने के, स्क्रीनिंग के बाद आप क्या करो, बट स्क्रीनिंग तो आपको मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, से है ना, थैंक मी लेटर वंस यू क्लियर स्क्रीनिंग, ठीक है, Okay. Yes, sir. चलो बड़ी, चलो, राइट, ओके, ओवर टू श्रीकांत, गुड इवनिंग। हेलो सर, मेरा नाम श्रीकांत है। मैं अभी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मेरा सवाल सिंपल सा है कि मैंने 11th और 12th मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किया, तब मैं सीरियस नहीं था, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं था। उसके बाद मैंने ड्रॉप भी लिया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं कर पाया मैं। तो अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और अब मैं सीरियस होकर मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है एज ऑफिसर। तो मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ जो मैंने लूज किया है, और कैसे मैं एक प्रकार का कमबैक कर सकता हूँ, नॉट एकेडमिक बट उनको मतलब एसएसबी को कैसे बता सकता हूँ कि मैं मतलब कैसे मैं इम्प्रूव किया मैंने खुद को। अंडरस्टूड, बढ़िया, अंडरस्टूड, बढ़िया, आप काम करो पहले कि आप अपनी इंग्लिश पे बहुत से फोकस करो, आपके पास टाइम है ना, यू हैव टाइम, आप अभी बीटेक कॉलेज में हो, अभी आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो, अभी आप कॉलेज में ही रहोगे 2 साल, है ना, अभी आप सीडीएस का सिलेबस देखो, उसको पढ़ते रहो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, ईसीए में पार्टिसिपेट करो अपने कॉलेज में, ठीक है, अपनी स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश पे ध्यान दो, एंड इन सब पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि 2 साल तो भी कुछ नहीं कर सकते हो ना, वो तो कॉलेज का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बीटेक तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना, सो वर्क ऑन दीज थिंग्स, प्लस एक बार सिलेबस देखते रहो सीडीएस का, और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आप बीटेक पढ़ रहे हो तो आपका मैथ्स वाला माइंड अभी ऑन है, तो 10th की मैथ्स लो और फ्री टाइम उसको सॉल्व करते रहा करो, तो आपको बीटेक के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे आपका काम आसान हो जाएगा, अगर आप सीडीएस के लिए सीरियस हो, ठीक है, बड़ी ठीक है सर, थैंक यू सर, वेलकम। Okay, any other queries, ladies and gentlemen? Because I was just seeing all the queries. Generally, most of the queries are being addressed. जो even जिन्होंने फॉर्म भरा है, some queries are very basic, जो हमने already interaction में हमने cover कर चुके हैं. Yes, Shantanu, please go ahead. Sir, do job after graduation is really important while doing the SSB. Like if we are completed our graduation, then if we are not working, so
Is that makes any sense that it is hampering? Thanks for the question, buddy. See, nothing matters. What matters is how you are able to justify what you have done. अगर आप एब्सेंट थे तो क्यों थे? आपको कोमा हो गया था, आप लटके हुए थे हॉस्पिटल में, वो रीजन था? कि आप देश की सेवा कर रहे थे, आप लोगों को कोविड में बचा रहे थे, वो रीजन था? कि आप ऐसे ही थाईलैंड जा रहे थे, वियतनाम घूमी घूमी कर रहे थे, वो रीजन था? यार इट ऑल डिपेंड्स दैट हाउ यू आर जस्टिफाइंग, आपका रीजन क्या है। जैसे बच्चा जब स्कूल लेट आता है तो उसका रीजन देखते क्यों लेट थे तुम। वो कहेगा सर एक बाढ़ में पानी बच्ची गिर गई थी, उसको बचा रहा था, तो पीटी के सर मारेंगे उसको, उसको अवार्ड देंगे अगले दिन, हमारे स्कूल का बहादुर बच्चा। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स आप जस्टिफाई कैसे कर पाते हो उसे, है ना। उसके लिए सोचो, आपको या तो रीजन सच होना चाहिए और या तो रीजन ऐसा होना चाहिए कि वो सच मान ले, है ना। ठीक है, करेक्ट। ओके, यस निशांत जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी आपने वो स्क्रीनिंग वाला पार्ट बताया, तो सर बिना बैच में इनरोल हुए वो बात पता नहीं चल सकती क्या, जो ब्रह्मास्त्र है वो पॉइंट? यार देखो, ब्रह्मास्त्र अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो लक्ष्मण ने तपस्या की थी, है ना। तो ब्रह्म का जो अस्त्र है वो ब्रह्मा की तपस्या से, वो तो बेसिक है यार। वो आप किसी को देख लो, विश्वामित्र को देख लो, उसने तपस्या की थी, तो ये तो बहुत बेसिक है यार। व्हाट यू पुट दैट यू गेट। मैं तो इस प्रिंसिपल के बियॉन्ड तो भगवान भी नहीं है। मैं आप अगर आज कहो हनुमान जी मेरा काम कर दो, नहीं करेंगे, बट आप 700 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लोगे तो शायद सपने में दर्शन दे दे, काम वाम हो जाए। तो वो तो यार भगवानों के साथ भी होती है यार, है ना। कुंभ में जाना पड़ता है, व्रत करने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है भाई। वो तो लाइफ इज लाइक दैट निशांत, है ना। क्योंकि मेरी यार इट्स अ वेरी सीक्रेट ट्रिक, है ना। मैंने अब सिर्फ लाइफ में एक ही इंसान को बताई है, ठीक है, तो वो मैं उसको बचा के रखना चाहता हूँ। आई वांट टू प्रिजर्व इट, ठीक है निशांत। दैट इज कुछ लिमिटेशंस है यार। ओके सर, ओके सर। Whatever you are seeing in this open classes and YouTube classes, I would just say it's just not even 10% of what we actually learn in classes. बहुत सारी चीज़ें हैं for all the candidates who have joined, they might have seen the difference. ठीक है, बैक टू बैक आज 2 कैंडिडेट रिकमेंड हुए, हमने डाला नहीं, है ना। देयर इज अ कैंडिडेट हु गॉट रिकमेंडेड फॉर TES, अनदर वन अगेन फॉर TES, फॉर टू डिफरेंट कैंडिडेट्स, 2 डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, ऑलराइट, ओके। हाय मोहित जी, बताइए। Sir, initially in NDA entry, I have Indian Navy as my priority, but now I have not done BTech and I am going for FCAT. So the question would be definitely going to ask that why the shift of interest? So you also recommended for both NDA and Army. So how you have tackled it? See, always say कि sir, I love all the 3 services equally. I love Army also, Navy also, Air Force also. Wherever I get selected, sir, I'll join that service. As simple as that. I love all the services, sir, all the 3 services equally. Never say कहीं पे किसी इंटरव्यू में जाके कि ये अच्छी है, ये बुरी है. Don't say that. All service they respect all the 3 services. और सब एक ही सर्विस, अब तो CDS के अंदर आती है, सबका बाप एक CDS है ना, सबका हेड एक है, तो यार it doesn't really matter. बस कहो कि सर I love all the 3 service, या फिर कहो अगर आप वेरी पैशनेट हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं किसी एक सर्विस के लिए, तो फिर उतना स्ट्रॉन्ग रिजिलियंस होना चाहिए कि सर आई एम अ हार्डकोर फैन ऑफ आर्मी बिकॉज मेरे पापा थे गढ़वाल राइफल्स में, वो शहीद हुए थे, मुझे उन्हीं की रेजिमेंट ज्वाइन करनी है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, वो बिलीव करेंगे हाँ यार इसके पास बहुत तगड़ा रीजन है आर्मी ज्वाइन करने का। बट एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल गाय, अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है तो बताओ, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो एक्सेप्ट इट कि सर ऑल द 3 सर्विसेज आई लव। वहां होगा तो वहां भी जाऊंगा, यहाँ होगा तो यहाँ जाऊंगा, सर सेना ही है, कहीं तो सर्व करना ही है मुझे, देश की सेवा करनी है ना। थैंक यू। करेक्ट। ये शांतनु जी, गुड इवनिंग। कुछ और भी है आपके क्वेरीज? No, sir. Questions out. All right. Okay. So I hope maximum queries are being addressed, and whosoever have got any other queries or any other thing, this whole session is being recorded, so you will get all the access to see it again, get it clarified. जो लेट आए हैं, बीच में आके आप एकदम पुराने वाले डाउट्स पूछोगे तो इट इज़ जस्ट लाइक आप बीइंग प्रेजेंट में आप हो नहीं, है ना, पास्ट में ही आप जी रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए बेसिक डाउट पूछने से अच्छा, राइट। ओके, हाँ जी, खुशी जी बताइए। Sir, one query from my side. Sir said कि he was a man, like उनकी एक पर्सनालिटी थी कि वो
अकेले कर रहे हैं, मतलब एसएसबी में तो उन्होंने अकेले किया. सो आई हैव दिस सिमिलर पर्सनालिटी कि I have in my NCC I have not communicated like I have not good communication with my batches, but I have good communication with my other batches like Air Force, Navy, and other wings. So how to work as like how to be in that like teamwork. among all the qualities of 15 OLQs जो है उनमें से टीम बिल्डिंग टीम वर्क एक क्वालिटी होती है. ठीक है, अगर आप दूसरी क्वालिटीज में अच्छे हो, लीडरशिप में अच्छे हो, ऑनेस्टी में अच्छे हो, इंटीग्रिटी में अच्छे हो, ऑब्जेक्टिविटी में अच्छे हो, रैशनैलिटी में अच्छे हो, अगर इन सब में आप अच्छे हो तो कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज इन सब का ओवरऑल मार्क्स उसमें देखा जाता है. बट स्पेशली इफ यू वांट टू वर्क अपॉन टीम बिल्डिंग, तो मेक फ्रेंड्स. ठीक है, ट्राई टू मिंगल विद देम, कॉमन टॉपिक्स पे बात करो, है ना. कॉमन टॉपिक्स क्या है? अब खुशी कुछ चीज होती है ना यार, जिससे हम दिल से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पाते ना, उनसे ही बात करने का मन करता है. मे बी आपका जो ग्रुप आपके आर्मी वाले एनसीसी में हो, आपके साथ उसको कनेक्ट ना फील हुआ हो आपको उनके साथ, इसलिए आप इतना ना खुली हो, बल्कि यू आर वेरी ओपन विद द नेवी एंड एयरफोर्स का काउंटर पार्ट्स. ठीक है, तो आई थिंक दोज पीपल वर नॉट एज पर योर सोल से आपके कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. तो ये इतनी कुछ बड़ी चीज नहीं, खुशी आप कर लोगे आराम से. इट्स नॉट अ बिग थिंग. आई थिंक यू विल बी एबल टू ओपन अप, क्योंकि आपने दूसरे ग्रुप्स के साथ ओपन अप किया है. दे वर योर वेरी गुड फ्रेंड्स आर्मी और एयरफोर्स से. तो आई थिंक यू हैव दैट कैपेबिलिटी, आप कर लोगे. इट वाज जस्ट मैटर ऑफ चांस कि आपकी टीम में ऐसे लोग नहीं थे जिनसे आप कनेक्ट कर पाओ उस टाइम पे. ठीक है, But you said कि जैसा environment होता है वैसा हमें ढल जाना चाहिए. बिल्कुल ढलना So चाहिए. बिल्कुल, अगर आप they are having environment of Maharashtra. Like they speak Marathi very well, and I don't speak Marathi very well. I am can speak Hindi and English better than Marathi. So that's why I think I left it there. ओके, नहीं ऐसा नहीं है यार. आई डोंट थिंक पीपल, पता नहीं, वेरी पुअर पीपल डिस्क्रिमिनेट समवन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. आई हैव आल्सो बीन कम्युनिकेटिंग विद पीपल फ्रॉम माय तमिलियन पोस्टमेट्स. यार, दे हग मी, they love me. I'm not able to speak Tamil, but it doesn't really matter. I think those set of people were slightly different. Otherwise यार हम ऐसा नहीं सोचते यार. It's very commonsensical कि जो बंदा महाराष्ट्र का नहीं है उसको मराठी कहाँ से आएगी, जो तमिलनाडु का है उसको तमिल आएगी, या मुझे कैसे तमिल आएगी, है ना. बट यार ऑल दीज पीपल हु आर फ्रॉम हियर, एक बंदा तमिलनाडु का था, कितने अच्छे से बात कर रहा था मुझसे. तो आई थिंक उनके पर्सनल कुछ बाइसेस होंगे. खुशी, आप में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा. ठीक है, अब आप यार हर जगह ढालने के लिए लैंग्वेज थोड़ी सीखते रहोगे यार. अब तमिलनाडु जाओगे तो तमिल भी सीख लोगे, आंध्रा जाओगे तो तेलुगु भी सीख लोगे. काफी डिफिकल्ट टास्क है ये, है कि नहीं? Yes, sir. तो आप जैसे हो वैसे रहो, अच्छे इंसान हो आप. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू. Yes, so this will be the last question. Yes, SS बताइए. वंस अगेन सर, मेरे को कंफ्यूजन था सर, जो जैसे आफ्टर जो हम लोग पासिंग आउट परेड के बाद जैसे हम लोग को अपने अपने फेवरेबल रेजिमेंट्स सब मिलते हैं, तो उसमें मेरे को एक चीज सबसे ज्यादा आज तक कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजन थिंग लगा, पेरेंटल रेजिमेंट. तो सर वो किस टाइप से मिल सकता है? फॉर एग्जांपल आपने अभी बताया कि गढ़वाल राइफल्स के बारे में, जो मान लीजिए मेरे फादर गढ़वाल राइफल्स है, तो वो रेजिमेंट में हम कैसे जा सकते हैं? मींस यार इसका पेरेंटल रेजिमेंट यार थोड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है यार. इसका मुझे भी थोड़ा आइडिया नहीं है बड़ी, है ना. मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, बट आई विल हैव टू आस्क माय ब्रदर. यू कैन रीच आउट टू मी लेटर ऑन, आई विल आस्क हिम एंड देन आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. प्रोबब्ली पल्लव को पता होगा बिकॉज़ ही इंटरेक्ट्स विद एवरीवन, बट मुझे इसका आइडिया थोड़ा कम है, बिकॉज़ नेवी में ना पेरेंटल रेजिमेंट एंड एयरफोर्स में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज ओनली इन द आर्मी. वो भी शायद इन्फेंट्री ब्रांच में ही है ये. वो ऐसा नहीं कि आपके पापा ऑर्डिनेंस में थे तो आप कहोगे मैं ऑर्डिनेंस में जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं. इट इज इन द इन्फेंट्री. तो ये ना इन्फेंट्री के ऑफिसर्स को ज्यादा पता होता है. तो आई विल आस्क देम एंड आई विल देन गेट बैक. ठीक है. यस सर. Adding on to your question, see it's a very simple concept. जैसे मान लो आपके फादर मान लेते कोर ऑफ ईएमई में थे, तो मान लो 4 लोग ने कोर ऑफ ईएमई के लिए ऑप्ट किया, है ना. एंड जो मेरिटोरियस है वो ऑब्वियसली ईएमई तो लेके जाएगा. फिर 2 लोग में डाइसी केस है, मान लो 2 या 3 लोगों में बच गया, ईएमई किसको मिलेगा? तो वहाँ पे पेरेंटल रेजिमेंट गिव्स यू पुश कि हाँ ये लेगेसी ये आगे बढ़ाना चाहता है. ये आर्मी में ये कॉन्सेप्ट चलता है. नेवी एयरफोर्स में ऐसा दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है ना. आप एग्जीक्यूटिव में हो सकते हो, आपका कोई बेटा कोई दूसरी जगह पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेम ही ब्रांच में. ठीक है, यू कैन गेट ये. इवन आर्टलरी में भी होता है कभी कभार. ठीक है, कोई मान लो कोर ऑफ आर्टलरी में है तो फिर आपको भी बेटे को भी आर्टलरी में. ठीक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट.
सो ये मेरिटोरियस सेपरेट केसेस है, उसके बाद के जो बच जाते हैं उनको पेरेंटल के थ्रू पुश मिल जाता है. दैट्स इट. बेसिक तो ये है. इसके बाद अगेन रेजिमेंट टू रेजिमेंट इट माइट वेरी, है ना, एकेडमी टू एकेडमी इट माइट वेरी. ठीक है, थोड़ा सा, बाकी कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है. यस. हाँ जी निशांत. जैन साहब. हाँ जी उषा जी बताइए. जी जी बताइए. वी हैव टू क्लोज अदरवाइज, है ना, काफ़ी कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी डीएम किया है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम. तो गाइज अगेन आई विल मेक इट क्लियर, है ना, वी आर सर लॉन्चिंग ऑन 24th and 25 कम्युनिकेशन संवाद बैच विद लेफ्टिनेंट पुरुषारक सुहेल रिटायर्ड, एंड ही विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इट, वॉट एवर इज नीडेड. ठीक है, सब कुछ सर ने डिज़ाइन किया है, सब कुछ करेंगे भी. और मोर इम्पॉर्टेंटली टाइमिंग विल बी नोटिफाइड. मोस्टली इवनिंग 7 PM है, एंड ऑल क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. ठीक है, प्राइसेस इज वेरी नॉमिनल, 1499. ठीक है, इट विल बी, है ना, प्रॉपरली टेल्ड. राइट, किसी को कुछ पूछना है दे कैन डीएम मी डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप 6281 सर 75296. एक क्वेश्चन पूछना है. जी पूछिए. सर साक्षी का एक क्वेश्चन है, वो शायद माइक ऑन नहीं कर पा रही, तो उसमें लिखा है कि बीइंग एन ऑफिसर ब्रैट ही शी डोंट प्ले एनी स्पोर्ट्स एंड डोंट हैव एनी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड एंड नॉट many of the achievements, so she want to know how to tackle that question. मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ये था कि आई वाज अ नेशनल प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस. So they asked me the question, Purushark, which sport do you play? I said, sir, table tennis. So my interviewer was listening. He said, ha 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 ha. Table tennis is a sport. अब मैंने कहा सर इट इज अ स्पॉट सर. तो मजाक उड़ा, मेरा बहुत मजाक उड़ा यार, कुछ नहीं कर सकते इसका. तो मैं तो टेबल टेनिस बोल के गया था, मैं फिर भी रिकमेंड हुआ. तो ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता यार, ऐसा होता तो बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे आते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं. सी आपको ये सब चीज थोड़ी इसी एज देती है. आप नहीं खेल पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप एसएसबी की प्रिपरेशन करो. बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एलिमिनेशन के. रिटन एग्जाम पे लोग एलिमिनेट होते हैं, स्क्रीनिंग में एलिमिनेट हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में एलिमिनेट हो जाते हैं. स्पोर्ट्स तो यार अच्छी चीज है और बहुत छोटा सेगमेंट. आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो ऐसी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है आपका इसमें साक्षी. आप आराम से इसको कोप अप कर सकते हो यार. कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते ही नहीं है. मेरे कोर्समेट्स में मतलब शायद 50% कोर्समेट मेरे सिविलियंस थे जो बहुत बेयर मिनिमम लाइफ में कुछ करके आए थे. 50% सैनिक स्कूल आरएमसी यहाँ के थे. तो साक्षी यू हैव लॉस्ट नथिंग इफ नॉट प्लेड एनी स्पोर्ट्स, डजंट मैटर. ठीक है, सामने देखो, अभी रिटन की तैयारी करो, एसएसबी की तैयारी करो. स्पोर्ट्स अच्छे खेलने वाले बंदे कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएंगे जो आपकी कॉम्पिटिशन होगी, डोंट वरी. ठीक है. So any other queries? I hope. पूछिए. मतलब सर आपसे एक क्वेरी सर. सो बेसिकली सर जो ऑलराउंड अभी जितना भी अभी तक हुआ हम लोग के लाइव सेशन सब, तो सर बेसिकली इसका रिकॉर्डिंग आपने बोला तो सर ये कहाँ से मिल सकता है? अगर आप हमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो यू विल फाइंड इट इन आवर यूट्यूब चैनल. ठीक है, वी हैव गॉट एवरी सेट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म, है ना. यू कैन सर्च अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ मर्जी दोनों मिल जाएगा. सर जस्ट कल्ट एसएसबी, यू विल फाइंड एवरी सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स, even these video recordings or the session. ठीक है, you will also find our past speakers who have given lot of talks. ठीक है, और even सर का भी मिलेगा after this session is done. ठीक है, alright. So we had a very great interaction, है ना, starting from covering from his 3 recommendation back to back consecutively without being getting screen out or conference out. More importantly, he has covered his academy experiences, service experiences as an ATC officer, as an executive officer, and more importantly as an officer who was an instructor in the same academy where he got trained. Last but not the least, he has also explained about his strategies of communication skills, about his way of expressing things which is very lucid and lucid for all the candidates to understand. And more importantly, the way he focused regarding the areas post service is something which is tremendous, because many officers are hesitant to share this thing. So thank you so much sir, on behalf of whole CultSSB and team. We are again very honored to host you, to have you on board, and we would love to see you in the classes, taking over and making the legacy of the CultSSB again stronger and make it a brand, and more known, more to all the candidates. Thank you so much sir. Absolutely, Pallab. Thank you so much, Pallab. Thank you so much for having me. Let's catch up each other on personal circuit very soon. Okay? Definitely sir. Sir, any last words for any candidates or all the audience or any SSB aspirants? All of you are amazing. Learn from Nishant. Have a good POC. Have a good communication skill.
ठीक है, नॉट जस्ट फॉर एसएसबी बट कहीं पे भी आपकी हेल्प करती है ये, फ्रॉम गेटिंग बंदी, उसको प्रपोज करना है लाइफ में, एवरीवेयर, कैन आई बाय यू ड्रिंक, ये हर जगह आपकी हेल्प ही करेगा, गुड कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को अच्छा बोलना आता हो तो वो फेल कर गया हो, ठीक है, जिसको अच्छा बोलना आता हो अपना काम निकाल लेता है। आप विंग कमांडर अभिनंदन से देखो यार, ही हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो पाकिस्तान से बच के आ गए, है ना। उनकी इंग्लिश वहां अच्छी थी, उनसे पूछा टेल मी, तो ही टोल्ड कि सॉरी लेफ्टिनेंट, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, दिस थिंग कम्स विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो इट हेल्प्स यू ऑलवेज बिहाइंड द एनिमी लाइंस, कहीं भी आप चले जाओ, जो अच्छा बोलता है यू विल हैव एन एज। ओके, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, देन बाय, टेक Thank you केयर। so much, sir. So before we end, Jai as we Hind. say, weapons wins war and speech wins heart. So does Lieutenant Purushark Suyal, retired, has properly explained. Thank you so much again to all the candidates, all the audience, all the backend team who has supported. We will watch. You can watch this session in our live YouTube classes, right? And more importantly, stay tuned with us for more such classes, more such sessions with officers. And last but not the least, the batch which is starting from 24-25th of February of Samvad Communication Batch by Lieutenant Purushark. Do join it and to live and learn something very extraordinary which you have never learned. Thank you so much. Jai Hind. So one last thing, sir. Yes, please. सर बेसिकली आपका मेजर ब्रिगेडियर प्रताप वाला रोल सर अच्छा लगा था, आप जो इंस्टा पे डाले थे, मीन्स